ऑलरेडी हमने टाइमिंग 11 बजे का दिया था, सो लेट द अदर पीपल जॉइन द सेशन। हम लोग शुरू कर देते हैं। So guys, we have Nikhil Raji over here who is working with HDFC Bank as assistant manager for digital marketing. So he will be guiding us today on what all job responsibilities he's taking care of from digital marketing executive से लेके till digital marketing manager का उसका journey कैसे था, how did he started, how did he grow। तो ये सारी चीजों पे निखिल यहाँ पे आप लोगों को गाइड करेगा। तो बीच में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग जान नहीं सकते, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम ओवर हियर। सो निखिल आपको 1 घंटे में पूरा गाइड करेंगे हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, बहुत सारी चीजों पे वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पे निखिल जी यू कैन टेक ओवर। Guys, at the end of the session, from 12 to 12:15, we'll keep a Q&A जिसमें आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या तो बाकी के लोग जितने भी हैं प्लीज म्यूट रख दीजिए यहाँ पे। Nikhil, you can start your session, like you can give a small introduction, like about your profile and about your job journey, and then from there you can start. All right, I'll admit the people who are coming here. So we have around 20 participants. अभी और 15-20, I think there would be 30-40 people who will be attending the session. So you can start. I've started the recording. Okay. Sure. And guys, thank you, sir. If you have any questions, आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बोला छोटा सवाल पूछिए, बहुत बड़े आंसर यहाँ पे अभी कवर करने नहीं आएगी, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये एक ओवरव्यू सेशन है आप लोगों के लिए, एक आइडिया आने के लिए आप लोगों को कि इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग का काम कैसे चलता है। तो निखिल राजा, आई थिंक ही इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट, इट्स बीन 10 years, मोर देन 10 years निखिल। 12 years। तो ठीक है श्री जी, निखिल जी शुरू। चलो स्टार्ट। Sure. Hi, good morning everyone. I want this session to be an interactive, कुछ ना कुछ questions पूछेंगे, किसी कुछ yes guys, सेशन इंटरैक्टिव रखिए, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर करेंगे। जितने भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, जितने भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स ही हैं निखिल, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उनको आप एक एज ए गाइडेंस करके उन्हें सारी चीजें बताइए। उनको भी समझ में आना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना है तो किस तरीके से क्या क्या चीजें आज की डेट में जरूरत है, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन है तो कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कौन सी प्रोफाइल में ज्यादा सैलरीज है, ये सब आप उनको अच्छी तरह से गाइड कीजिए ताकि एक मजा आ जाए उनको भी। ठीक है? Sure. Yeah, you can sir, I'll mute for 5 minutes. Yeah. Yes, sir. Yes, Thank you so much. Thank you. So guys, so a quick introduction. My name is Nikhil Raje. I am a senior marketing manager, digital in HDFC Bank, currently for the last 1.5 years. Previous to this, I was working with ICICI Bank for 7 years. Again, managing the same profile, managing their digital campaigns across platforms, across products, web campaigns, app campaigns, credit cards, mobile campaigns, home loans, personal loans, and various other campaigns. Prior to that, I was in an agency where I used to work as an account manager, and even before that, I was working in a startup. So my whole entire career has been in the digital marketing. So prior to that, I was a freelancer as well. I have my own company as well. So I have been to this Rohit Sir's classes for I think 12 years back before I started my career. So that was the break even point for me when I came to Pune. I came to the classes, and it was a very good experience. And I still remember the times that we had in that sessions that we had that time. That are really fruitful for me right now also. So you guys are really at a good place right now, and someone of you might have joined, might not have joined, or might have been thinking of doing something else. So this is the right platform for you guys to work around with. So yeah, let's start quickly. So I have a deck with me. I can present that deck, but then I understand that you guys are just joining in, you guys are freshers, and you guys don't have an understanding of the overall digital ecosystem or the banking ecosystem as such. So I'll just take you through the pointers, how you can enhance your career, how you can enter in this digital environment for banking sectors, right? So you guys might know. Yeah.
So you guys might be familiar with the basic digital marketing tools, paid, your Nikhil, SEO. I'm Yeah, really sorry to interrupt. Nikhil, yeah. हिंदी इंग्लिश चलेगा, दोनों लैंग्वेजेस ठीक यूज है, करो. ठीक है, ठीक. तो ज्यादा हिंदी रखिए. यू कैन यूज इंग्लिश, सो मेक इट अ Sure, मिक्स ऑफ sure, बोथ. sure, या. sure, sure. Okay, yeah. तो मेरे को इतना तो पता है कि यू गाइस माइट नो कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है. बेसिक बेसिक चीजें हैं. पेड मार्केटिंग है, एसईओ है, सोशल है, तुम्हारा ईमेल है, एसएमएस है. ये सारी चीजें तो बेसिक, आई होप यू गाइस माइट बी नोइंग. एंड इफ नॉट, दैट्स ओके, यू गाइस विल लर्न इट. सो अगर तुम लोग को एज अ करियर, इफ यू गाइस आर चूजिंग कि हमको आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग करना है और हमको बैंकिंग सेक्टर में अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो व्हाट इज इट दैट यू गाइस शुड लुक आउट फॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकिंग में कोई भी बैंक को अगर डिजिटल होना है, तो बाय डिफॉल्ट यू गाइस वुड बी यूजिंग गूगल पे, फोन पे, कोई भी बैंक का ऐप. इज देयर एनीवन हु इज यूजिंग अदर देन गूगल पे एंड फोन पे? कोई और ऐप यूज कर रहा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे छोड़ के कोई बैंकिंग ऐप यूज कर रहा है क्या? एनीवन कैन आंसर. किसी को कुछ पता है No. कोई बैंकिंग ऐप? तुम्हारे, ICICI चलो. हाँ, ओके. आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा ऐप यूज कर रहे हो? ओके, ठीक है, चलो. सो यूजुअली कैसा होता है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये जो वो एप्स, ये जो एप्स है ना, ये सारे एप्स एक इंडिविजुअल एप्स है. ये एक बैंक नहीं है. कोई भी बैंक को अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करना है, तो वो खुद का ऐप क्रिएट करते हैं. जैसे आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल है, आई मोबाइल पे. वैसे ही एचडीएफसी बैंक का पेज ऐप है. और कोटक का 811 है सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के. ये एप्स क्या होते हैं बेसिकली? कोई भी अगर अगर कल मैं जा रहा हूँ एक फिजिकल बैंक में, एक ब्रांच में जा रहा हूँ, और मेरे को ब्रांच में जाके कोई एक्टिविटीज करनी है, जैसे मेरे को कोई अकाउंट ओपन करना है, या मेरे को होम लोन लेना है, या पर्सनल लोन लेना है, या क्रेडिट कार्ड लेना है, तो पहले कैसे होता था, यूजुअली लोग जाते थे बैंक में, ये सारी चीजें बैंक से जाके फिजिकली जाके करते थे. बट अभी क्या होता है, नाउ दैट द वर्ल्ड हैज ग्रोन सो मच, एंड बिकॉज ऑफ मोबाइल यूसेज, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है. कोई भी बंदा फ्रॉम द एज ऑफ से स्मॉल किड, 5 साल के बाद से सब यूज कर रहे, टिल द एज ऑफ 60. जो अपना ऑडियंस होता है, जो बैंकिंग ऑडियंस है, वो बैंकिंग ऑडियंस कहाँ से होता है? अबव 18 ईयर्स. 18 to 50 इज द बैंकिंग ऑडियंस. अभी ऑडियंस मतलब क्या? ऑडियंस मतलब जो लोग तुम्हारे बैंकिंग सर्विसेज यूज करने वाले हैं. अभी बैंकिंग सर्विस मतलब क्या? जैसे कार्ड हो गया तुम्हारा, लोन्स हो गया तुम्हारा, बैंकिंग सर्विसेज, एसएमएस वाला हो गया, व्हाट्सएप बैंकिंग हो गया. ये बहुत सारी चीजें रहती है जो बैंक वाले यूज करेंगे. तो तुम्हारा ऑडियंस यहाँ से डिफाइन होता है कि तुम जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन जाते थे, लोग जाते थे ब्रांच में करते थे, वो चीज ऑनलाइन आ गई है. अभी वो ऑनलाइन आ गई है, तो उसके ऑनलाइन आने के लिए क्या क्या चीजें लग रही थी? चलो, उसका एक वेबसाइट बनाओ, उसका एक ऐप बनाओ, और ऑनलाइन कनेक्टिविटी दे दो, और यूजर का खुद का सिक्योरिटी पासवर्ड देके उसको वहां से लॉग इन करवा दो. ये बेसिक बेसिक फीचर्स थे. ठीक है. तो ये सारी चीजें बैंक ने स्टार्ट की, कि बैंक भी इवॉल्व होने लग गया, बैंक भी ये सारी चीजें करने लग गया. अभी हाउ इज इट दैट यू गैस कैन लिवरेज ऑल दिस थिंग्स? अभी तुमको क्या होगा, तुमको ये सब चीज करने के लिए तुम्हें एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तुम्हें सोशल मीडिया समझ में आना चाहिए, तुमको पेड मार्केटिंग समझ में आना चाहिए, और तुमको ऐप मार्केटिंग समझ में आना चाहिए. ये 3 बेसिक चीजें तो आनी चाहिए. पहले 2 चीज तो तुम लोग सीख रहे हो, और सीख भी जाओगे. इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया इतना वायरल है, इतनी सारी चीजें वायरल होते रहती है, तो यू गाइस विल बी वेल वर्स विद ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स. इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारी चीजें तो है. नाउ, हाउ डू यू लिवरेज योर हाउ डू यू लिवरेज योर बैंकिंग ऐप एक्सपीरियंस, और उसको हम लोग एनहांस कैसे करें, इज व्हाट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड. अभी बेसिकली कैसा होता है, कोई भी ऐप में, अगर तुमको कोई भी बैंक के डिजिटल में तुमको एंट्री करना है, तो तुमको ऐप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ऐप क्या होता है? तुम्हारा फिजिकल बैंक का रिप्लेसमेंट है.
जो फिजिकल बैंक में जो सारी चीजें होती है वो सारी चीजें तुमको मोबाइल ऐप में समझ में आ जाएगी, तुम्हारे मोबाइल मैप में ऐप में आएगी। जैसे तुमको अगर अकाउंट डिटेल्स, तुम जाके बैंक में जाके पासबुक प्रिंट करते हो, तो पासबुक प्रिंट में तुमको क्या दिखता है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो तुमको मोबाइल ऐप में दिखेगा। तुमको अगर वहां पे जाके तुमको पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, तो तुम जाके बोलते हो कि अच्छा ये पैसा मेरे को ये अकाउंट के स्लिप भर के देते हो, बोलते हो ये मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, ऐप में कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो वहां पे चलती है ऑफलाइन, तुमको ऑनलाइन करनी है। तो ये जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन वाला जर्नी है, ये जर्नी तुमको सीखना है। मतलब तुमको खुद को ये सोचना है कि अच्छा चलो वहां पे जो चीज हो रही है उसको मेरे को कैसे मैं मोबाइल से कराऊं, और ये करने के लिए तुम लोग प्रमोशन करते हो। अभी प्रमोशन करते हो मतलब क्या करते हो, बेसिकली तुम लोग ऐसे लोगों को ऐड दिखाते हो जिन लोगों से तुमको लगता है कि वो ये चीज करेंगे। तुमको जैसे कोई ऑडियंस है, तुमको लगता है कि ये वाला ऑडियंस मेरे लिए सही है, वो तुम लोग कैसे चूज करोगे। मेरे पास डेक है, आई विल स्टार्ट विद बेसिक बेसिक चीजें, जहां जहां पे मुझे लगेगा कि बहुत एडवांस है मैं स्किप करके थोड़ा आगे चले जाऊंगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग एनवायरनमेंट में ये है। आई जस्ट स्टार्ट विद, लेट मी नो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ऐप इकोसिस्टम क्या होता है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सारे प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजीज डिजिटली हम लोग ऐप के थ्रू करवाएंगे। बैंक में होता है, जो ऑफलाइन होता था वो ऑनलाइन हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है। बैंकिंग एक्सपीरियंस सेम, जस्ट वो तुमको मोबाइल पे आ गया। हम लोग ने डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों किया, ये सारे रीजंस की वजह से किया। अभी ये क्या रीजन है, मैं एक एक चीज सबको एक्सप्लेन करूंगा। एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अभी कन्वीनियंस क्या होता है कि तुमको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, तुम हाथ में मोबाइल है, तुम सामने सामने कर सकते हो। ये तुम्हारा एक्सेसिबिलिटी हो गया, इजी टू यूज हो गया। कॉस्ट इफिशियंसी, अभी कॉस्ट इफिशियंसी ये बैंक को होता है, ये तुमको नहीं होता। तुम्हारे पास तो चलो, तुम एक्चुअल चीज में अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए भी कॉस्ट इफिशियंसी। अगर ब्रांच दूर है, तुमको ऑफिस से ब्रांच जाने के लिए टाइम नहीं है, या तुमको दूसरा कुछ काम है, तो तुमको जाने आने का टाइम बच गया, वहां का जो भी कॉस्ट लगने वाला है बच गया। बैंक के लिए वो कितना यूजफुल होता है, एक बैंक सेटअप करना, उसमें स्टाफ रखो, तुम्हारा पेपर वर्क सिस्टम्स और ये सारा जो कॉस्ट होता है, वो सारा कॉस्ट जीरो हो गया, बिकॉज वो तुमको ऐप में मिल गया सारी चीजें। इसलिए बैंक के लिए वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव क्यों हो गया, बिकॉज कस्टमर जब बैंक पे जाके पूछता था कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें ऑलरेडी उसके ऐप में है। उसको सिर्फ मोबाइल में उसको स्क्रॉल करके देखना है, अच्छा मेरे को ये करना है, सिलेक्ट करो, हो गया। एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स कैसे हैं? अभी सिक्योरिटी में तुम्हारा एमपिन है, ओटीपी वैलिडेशन है, बायोमेट्रिक है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तुम लोग वेल वर्स भी रहोगे, तुम लोग ऐप यूज कर रहे हो, जीपे यूज करते हो, तो तुमको पता है कि तुम पिन डालते हो, तुम्हारा फेस रीड होता है, बायोमेट्रिक स्कैन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में है, ये सब चीजें तुमको बैंक में जाके करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी अभी है। तो ये सिक्योरिटी वाइज तुम्हारा ये हो गया। रेगुलेटरी कंप्लायंस ये थोड़ा सा एडवांस है, ये अभी के लिए आप लोग नहीं देखो तो ही चलेगा, बिकॉज ये बैंक लेवल पे है कि बैंक को कुछ कंप्लायंस रहता है जो बैंक को समझना होता है, बैंक को वो सारे गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं वो ऐप बिजनेस क्रिएट करने के लिए। एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर कोई भी चीज तुम ब्रांच में देख रहे हो कि ब्रांच में कोई भी आता है, तो ब्रांच में क्या होता है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, कोई भी डेटा का ऐसा लॉजिक नहीं रहता कि अच्छा इसने अभी ये लिया तो आगे जाके कौन सा सर्विस यूज होगा। बट ऑनलाइन पे सारी चीजें ट्रैक होती है, सारी चीजें ट्रैक होती है, तो तुमको पता चलता है कि अच्छा ये यूजर ने आज अगर क्रेडिट कार्ड लिया है तो आगे जाके ये मेरा होम लोन भी ले सकता है, तो इसको हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन हुआ था डिजिटल में, और डिजिटल में रिवॉल्यूशन होने के बाद बैंकिंग में हम लोग ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम लोग डिजिटाइजेशन किए थे बैंकिंग। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सिमिलरली है। अभी अभी तुम लोग बोलोगे कि इसमें तुम्हारा जॉब क्या है, तुम क्या कर सकते हो। अभी तुम्हारा जॉब दो जगह पे है, एक अगर तुम एक्चुअल में बैंक में काम कर रहे हो, और दूसरा जब तुम एजेंसी में काम कर रहे हो। एजेंसी क्या होती है, देयर इज अ एजेंसी विच मैनेजेस
द कैंपेन्स, द पेड, एसईओ, ये सारे कैंपेन्स मैनेज करते हो। तुम लोग को अभी पता होगा कि ये सारी चीजें, तुम लोग अभी जॉब के लिए जाओगे तो दो जगह पे काम कर सकते हो अगर तुमको बैंकिंग एनवायरनमेंट में काम करना है। आइदर यू गो फॉर अ बैंक और यू गो फॉर एन एजेंसी विच मैनेजेस द बैंकिंग अकाउंट्स। अभी बैंक में जब काम करोगे तो बैंक वाले कैसे होते हैं, देयर आर वेरियस एग्जाम्स। अभी जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है, ये सारे बैंक्स में तुमको अगर ज्वाइन करना है तो तुमको बैंक की एग्जाम देनी पड़ती है और उसके थ्रू तुम आगे जाते हो। बट बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, यहाँ सारे ये सारे बैंक्स में ना तुम लोग को एग्जाम बैंक की देनी नहीं पड़ती। तुमको स्पेसिफिक कोर्सेज करके और ये जो अभी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा ऐप पे, और ये सारी चीजें करके इंटरव्यू दे सकते हो और वहां पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये तुम्हारा बैंकिंग एनवायरनमेंट पे हो गया। अभी इसमें तुम डिपेंड करता है तुम कितने एक्सपीरियंस पे हो तो कौन से लेवल पे जाओगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं बैंकिंग में गया था, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में 2015 में ज्वाइन किया था मैंने। तो 2015 में मेरे पास अराउंड 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, एजेंसी एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो उसके बाद मेरे को जो एंट्री लेवल मेरे को मिला वो मेरे को डिप्यूटी मैनेजर मिला। अभी बहुत सारे लेवल्स रहते हैं जहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस पे और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। मेरे को डिप्यूटी मैनेजर का एंट्री मिला, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर। मैं वहाँ पे 7 साल था, मेरे 2 प्रमोशंस हुए। उसके बाद में आज सीनियर मैनेजर पे। तो जो हायरार्की होता है, हर एक बैंक का हायरार्की अलग होता है। हाँ हायरार्की स्टार्ट विद डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, एवीपी के बाद आगे सारी ग्रेड। निखिल जी, एक क्वेश्चन पूछना था आपको यहाँ पे। थोड़ा बहुत हमारे स्टूडेंट्स को ये बता सकते हो क्या आप, आपने जब आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री किया वो आपके लिए बैंकिंग का पहला जॉब था, बराबर है? करेक्ट। तो आपका जब इंटरव्यू हुआ नॉर्मली, मतलब आपका जो आईसीआईसीआई बैंक में सिलेक्शन हुआ वो कौन से बेसिस पे था? मतलब आप कौन से चैनल पे ज्यादा काम किया था? आपने जैसे एसईओ पे काम किया था, या आपने पेड कैंपेन्स पे काम किया था, या फिर आपने ईमेल मार्केटिंग ज्यादा किया था? तो आईसीआईसीआई बैंक में एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या थी, और आपका प्रोफाइल जो उन्होंने सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया, वो कौन से बेसिस पे किया? ये जरा हमारे स्टूडेंट्स को आप बता सकते हो क्या? श्योर श्योर। तो आईसीआईसीआई बैंक में जब मेरा इंटरव्यू था उसके पहले मेरे पास अराउंड 3.5-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, मेरा एजेंसी एक्सपीरियंस था। और एजेंसी पे मैं पूरे सारे कैंपेन्स हैंडल करता था, पेड एंड एसईओ सारी चीजें करता था। एसईओ में मेरे पास जो क्लाइंट्स थे वहाँ पे एजेंसी में, जो वो रियल एस्टेट रिलेटेड क्लाइंट्स थे, जिनका मैं ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस, सर्च, फेसबुक, सब कुछ चीजें करते थे, डिस्प्ले एड, सारी चीजें हम लोग करते थे। अभी वो मैनेज कैसे करते थे, मैं एज अ पर्सन मुझे ये सारी चीजें आती थी। मैं ये सारे कैंपेन सेटअप करके, लाइव करके, उसको ऑप्टिमाइज करके सब कर सकता था। ये मतलब करने के बाद आप मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पे आप कर, मतलब मैं एग्जीक्यूशन मैंने स्टार्ट किया ना एजेंसी में, तभी एग्जीक्यूशन लेवल पे था। उसके ओके। बाद जब मैं अकाउंट लेवल पे आया, जैसे मैं अकाउंट मैनेजर बना, अकाउंट हेड बना, दैट टाइम आई यूज्ड टू लीड अ टीम। मेरे पास और 4 बंदे थे जो मेरे एग्जीक्यूट करते थे, कैंपेन क्रिएटिव्स बनाते थे, ये सारी चीजें। मेरे पास एक टीम थी जो ये ओके, सब कर सकते थे। मतलब आपने तो स्टार्ट, पहले आपने एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, मतलब वहां पे यस आपने खुद ने सारी चीजें को एग्जीक्यूट किया, जैसे एसईओ अप्लाई यस करना, गूगल एड्स के कैंपेन सेट करना, बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करना। हाँ, ये सब करने के बाद एक्सपीरियंस आ गया आपको और आप बन गए अकाउंट मैनेजर। तो अकाउंट मैनेजर यस। कौन होता है, जरा बताओगे क्या? ओके, तो अकाउंट मैनेजर क्या होता है? कोई भी एक एजेंसी में हायरार्की ऐसे होती है कि बेसिक एक एग्जीक्यूटिव रहता है। अभी समझो कल तुम कोई भी स्टूडेंट अगर कोई एसईओ कर रहा है, उसको एसईओ में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो ओके, एसईओ अच्छी तरह सीख के उसने एजेंसी में ज्वाइन किया, तो ही विल स्टार्ट एज एन एग्जीक्यूटिव इन एसईओ। एक बेसिक में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वो चला जाएगा। उसका एसईओ का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड वो क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर उसको एसईओ का अलग अलग लेवल पे आगे जा सकता है। अभी 2 चीजें रहती है, आइदर यू गो फॉर एनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन और यू गो फॉर ऑल। जैसे मेरे टाइम पे ऐसा, मेरे को सारी चीजें करनी थी, सारी चीजें देखनी थी। मेरे को पेड भी करना था, एसईओ भी करना था, मेरे को ईमेल मार्केटिंग भी करना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, मेरे को सब समझना था। दैट टाइम इट वाज नॉट दैट ओपन कि चलो एक में इतना लेवल का कर सकते थे, बट मैंने सब चीजें की। अभी क्या होता है, अभी के सिनारियो में अगर तुमको सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन पे भी जाना है ना, तो भी तुमको अलग अलग पोजीशंस बनी हुई है। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हम्म, एंड उसके बाद तुम सिलेक्ट करो कि तुमको कहाँ सही लग रहा है।
तो एजेंसी में स्टार्ट लेवल एग्जीक्यूशन लेवल रहता है, जहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे अराउंड 1.5-2 years तो तुमको वो करना चाहिए आइडियल सिनारियो में। एवरी स्टूडेंट शुड स्टार्ट विद एन एग्जीक्यूशन लेवल, और उसको ये चीज 1-1.5 साल करनी चाहिए। वाई? बिकॉज वहां पे ये सब चीजें करने के बाद यू गाइस एक्चुअली नो कि चीजें कहाँ कहाँ पे अटकती है, क्लाइंट से क्या क्वेश्चंस आते हैं, सिस्टम्स, गूगल प्लेटफॉर्म, फेसबुक से कहाँ कहाँ पे क्या चीजें अपने को नई नई चीजें सीखने मिलती है। तो एजेंसी लेवल पे यहाँ पे तुम्हारा लर्निंग फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, कोई भी यहाँ इसी पे एक क्वेश्चन पूछना था निखिल जी। हाँ, मैं आपको बीच में भी क्वेश्चन पूछते रहूंगा ताकि श्योर ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से आता है। तो आपके सामने अगर मैं दो सिनेरियोज रखता हूँ यहाँ पे निखिल जी। पहला सिनेरियो है कि किसी स्टूडेंट को अभी किसी एक कंपनी में जॉब मिल रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो कंपनी का नाम है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट है जो एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उनके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ओपनिंग है, और वहां पे उनके पास जो बंदा है वो अगर वहां पे ज्वाइन करता है तो उसको वहां पे सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंट के लिए ही काम करना है, उसको दूसरा कोई भी एक्सपोजर नहीं है। और दूसरा है एक एजेंसी जहां पे वो जाता है, और एजेंसीज में जैसे मेरा नॉलेज है, अब एजेंसीज में कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट हो सकता है, कोई होटल इंडस्ट्री का हो सकता है, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री का हो सकता है, कोई बैंकिंग का हो सकता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट ने कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? परसिस्टेंट में उसको जॉब मिल रहा है, परसिस्टेंट बड़ा एमएनसी कंपनी है, सैटरडे से संडे छुट्टी है, पिकअप ड्रॉप मिल रहा है, उसको सैलरी अच्छा मिल रहा है, ये उसको देखना चाहिए, या उसको एजेंसी के साथ स्टार्ट करना चाहिए जहां पे उसको अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करने मिलेगा? तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें, आप जरा वो बता सकते हो क्या? ओके। अगर इफ अ स्टूडेंट इज स्टार्टिंग ऑफ करियर, तो हम्म, मेरे हिसाब से तो उसने एजेंसी ही ज्वाइन करना चाहिए। अगर हम्म, देखो डिफरेंस क्या होता है बड़े क्लाइंट वर्सेस एन एजेंसी। बड़े क्लाइंट के यहाँ पे ना स्कोप ऑफ वर्क बहुत स्मॉल रहता है, उनके ओके, पास बजट कम रहता है, और उनका थिंकिंग बहुत रिजिड रहता है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड है, दे कैन नॉट टेक रिस्क कि हम लोग को सभी चीजें करनी है, वो ऐसे नहीं करते। एजेंसी लेवल पे क्या होता है, एजेंसी पे बहुत प्रेशर नहीं होता, उनके पास क्लाइंट बहुत सारे रहते हैं, एक साथ तुम लोग बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, और तुमको लर्निंग भी उतना ज्यादा आ सकता है। ब्रांड में तुमको इतना लर्निंग नहीं आएगा। ब्रांड में क्या होता है, कोई भी बड़े ब्रांड में तुमको ब्रांड का लर्निंग आएगा, ब्रांड में कैसे काम होता है वो समझेगा, बट तुमको प्लेटफॉर्म लेवल या तुमको इंडस्ट्री लेवल लर्निंग इतना ज्यादा नहीं आता। तो कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहता है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर एन एजेंसी फर्स्ट, लर्न देयर फॉर एटलीस्ट 2-3 years एंड देन गो फॉर अ ब्रांड। तब तुमको लर्निंग भी रहेगा, एंड तुम जब ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड में तुम्हारा वैल्यू रहेगा कि बिकॉज ये एजेंसी से बंदा आया है और उसको इतना सारा अंडरस्टैंडिंग है, इतना नॉलेज है, तो उसको एक अच्छे लेवल पे लेते हैं, इसीलिए तुमको पोजीशन भी अच्छा मिलेगा। ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड का हायरार्की जो होता है ना, कोई भी बैंक में या कोई भी कंपनी में तुम्हारा जो प्रमोशंस होता है मिनिमम 2 से 3 साल के बाद ही होता है। 3 साल तो मिनिमम, बैंक में तो 3 साल है, 3 साल के बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होता है। तो जब तक 3 साल नहीं होते तब तक तुम सेम लेवल पे सेम चीज करते रहोगे। बट यही अगर तुम 3 साल एजेंसी में निकालोगे, तुम्हारा प्रमोशन भी फास्टर होता है, और तुमको लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो 3 साल समझो, अगर तुम असिस्टेंट मैनेजर इन बिग ब्रांड वर्सेस असिस्टेंट मैनेजर इन एन एजेंसी, तो एजेंसी से 3 साल में तुम अकाउंट मैनेजर हो जाओगे, और अकाउंट मैनेजर का अगर 3 साल बाद बड़े ब्रांड में आना है, तो उसको सीनियर मैनेजर या फिर एवीपी लेवल पे आ सकता है, जो ब्रांड ब्रांड में रह के 3 साल में नहीं कर सकता था। तो ये एक लर्निंग है तुम्हारे लिए कि कोई भी एजेंसी से जाके तुम्हारा ग्रोथ ज्यादा है, और तुम्हारा लर्निंग भी ज्यादा फास्ट है। इसीलिए आई वुड प्रेफर एजेंसी वर्सेस अ ब्रांड एट इनिशियल स्टेज ऑफ करियर। यस, अगर 4-5 साल हो गया है तुमको डिजिटल मार्केटिंग करके, अगर 5 साल हो गया है कोई भी एजेंसी में कर रहे हो, एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग इन ब्रांड, देन दैट इज द राइट डिसीजन। बट इनिशियली आई वुड प्रेफर एन एजेंसी। ओके। सो निखिल जी, आपने जो आईसीआईसीआई बैंक में स्टार्ट किया वो एग्जीक्यूशन लेवल पे स्टार्ट किया एज ए एग्जीक्यूटिव, और एज ए एग्जीक्यूटिव आपने कितने साल काम किया, उसके बाद आप अकाउंट मैनेजर बन गए? या तो आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जब ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन एज डेप्यूटी मैनेजर। और ये डिजिटल, तो आईसीआईसीआई बैंक में कैसे होता है, देयर इज अ सेंट्रल डिजिटल टीम, जो आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी डिजिटल कैंपेन रहते हैं तो सारे मैनेज वही टीम करती है। मैं वो टीम में था, तो मैंने वहाँ पे एक जूनियर लेवल पे स्टार्ट किया था, डेप्यूटी मैनेजर पे। आई वाज देयर फॉर 7 years। डेप्यूटी मैनेजर पे मैं उनके बेसिक से लेके सारे प्रोडक्ट्स देखता था, पर्सनल लोन, होम लोन, उनका आई मोबाइल ऐप,
क्रेडिट कार्ड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स का मैंने अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल से ले लिया। मेरे को डिजिटल तो आता था, मेरे को डिजिटल का प्रॉब्लम नहीं था। मेरे को वहां जाके उनका प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग करना था और वो प्रोडक्ट को मैं डिजिटल कैसे यूज कर सकता हूँ, डिजिटल पे कैसे लेके आ सकता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग मैंने वो 2 साल में लिया, 2 ढाई साल में। उसके बाद मेरा एक प्रमोशन हुआ जहाँ पे मैं मैनेजर हुआ। वहां पे मैनेजर होने के बाद मेरे को एजेंसी लेवल भी ज्यादा लेवल का एक्सेस मिला, मेरे को इंटरनल प्रोडक्ट टीम से ज्यादा एक्सेस मिला। प्रोडक्ट टीम क्या होती है? अभी प्रोडक्ट टीम मतलब बेसिकली जैसे ऐप बने, कार्ड बने हैं, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन चाहिए, इसका हर एक का प्रोडक्ट टीम रहता है जो ये प्रोडक्ट ओन करता है। और वो लोग के साथ हम लोग को कन्वर्सेशन करना पड़ता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो मेरे को कितना बजट मिलेगा, फिर हम लोग को कितना क्रिएटिव्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कम्युनिकेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट टीम से। तो वो फिर मेरे को एक्सपोजर मिला। फिर 4 साल 5 साल बाद मेरा एक और प्रमोशन हुआ जहाँ पे मैं ग्रेड 2 मैनेजर बना। फिर मेरा और एडवांस लेवल, मेरा और सीनियर स्टेक होल्डर से हुआ। जैसे मेरा एसवीपी, सीएमओ के साथ मेरा डिस्कशंस होने लग गया। ये सारी चीजें कब हो सकती है? जब तुम्हारा बेस लाइन अगर अच्छा सही हो। अगर एजेंसी से मेरा बेस लाइन नहीं होता या फिर मैंने पहले 3 साल मेहनत नहीं किया रहता तो मेरे को सीएमओ से डिस्कशन नहीं होगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक के सीएमओ के साथ तुमको डिस्कशन करना है तो यू शुड हैव दैट लर्निंग। इसीलिए तुम लोग का इम्पोर्टेंट है, कोई भी जॉब पे जाओगे तुमको डे वन से लर्निंग करना है और नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली योर डोमेन। सी टू इट कि तुमको बाकी लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि दूसरे के काम में जाके कुछ किया ऐसा उल्टा सुल्टा। जस्ट समझ के लो कि वो कर क्या रहे हैं। तुमको पता नहीं होगा बट दैट थिंग माइट हेल्प यू इन योर फ्यूचर। कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर पाओगे। उसको एक मसल मेमोरी बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो वो होता है और वो करना चाहिए सब लोगों ने कि कौन क्या कर रहा है वो सब आंख और दिमाग खुला रख के देखना चाहिए कि सारी चीजें कहाँ पे आजू बाजू में क्या हो रहा है। हाँ, तो तो ये निखिल जी बहुत मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पूछना था। हम्म, हाँ, तो आपने जैसे बोला कि आप जब आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करते हो, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ आप डेप्यूटी मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए, तो आपने बोला कि आप उनकी अलग अलग टीम्स के साथ बात करते थे। तो ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन का डिपार्टमेंट पूरा अलग था, पर्सनल लोन का पूरा अलग था। तो होम लोन वाले आपके साथ आके कोऑर्डिनेट करें कि हाँ, डिजिटल टीम का कौन है, निखिल जी है जो सीनियर है डिजिटल टीम के, तो निखिल जी के साथ होम लोन की टीम के लोग आके बात करते कि इतना इतना हमारा टारगेट है, इस साल इतना डिसबर्समेंट होना चाहिए, तो इतना डिसबर्समेंट होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब लेके आपके पास आते थे और उनका डिजिटल का पूरा काम आप लोग करते थे, ऐसा बोल रहे हो आप? यस। तो कोई भी प्रोडक्ट टीम है ना, प्रोडक्ट टीम का एक टारगेट होता था। जैसे अभी सर आपने सही बोला, कोई भी प्रोडक्ट टीम का एक एनुअल टारगेट होता है। हम्म, कि समझो क्रेडिट कार्ड है तो हम्म, क्रेडिट कार्ड पे पूरा साल का टारगेट है मेरे को, समझो 50,000 कार्ड डिसबर्स करने हैं। हम्म, कोई भी 50,000 कार्ड करने हैं और उसमें भी 50,000 कार्ड में अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं। एक फ्री कार्ड है, एक थोड़ा पेड है, एक प्रीमियम कार्ड है। तो उनका हर एक कार्ड का टारगेट होता था। ओके, अभी ये कार्ड का टारगेट अगर साल का सेट है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को आके वो बोलते थे हम लोग का ये टारगेट है, हम लोग को डिजिटल से इतना चाहिए। अभी वो लोग ऑफलाइन भी करते हैं, जैसे ब्रांच है, तुम्हारा डीएसएस है, उनसे भी बिजनेस होता है। तो डिजिटल का वो लोग एक टारगेट देते थे कि हम लोग को इतना करना है। अभी कैसे करना है वो हम लोग पे होता है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएंगे वो हम लोग पे होता है। यस, फिर हम लोग विल गो बैक, हम लोग वो सारा स्टडी करते थे, सारा एनालिसिस करके उसको हम लोग ड्रिल डाउन करते थे। अभी साल में ये करना है तो हम लोग एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। यूजुअली बैंकिंग में कैसा होता है, अप्रैल से कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। 3 3 मंथ्स के क्वार्टर्स हम लोग बोलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे। तो बैंकिंग में जो भी ज्यादा एक्टिविटीज डिजिटल पे या जो भी होता है ना, वो लास्ट के 6 महीने में ज्यादा होती है। बिकॉज वहां पे फेस्टिव सीजन होता है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आती है, बहुत लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं। इसीलिए बैंकिंग वाला जो भी प्रमोशन ज्यादा होते हैं ना, वो अक्टूबर के बाद मार्च तक हाँ, ज्यादा होते मतलब जैसे हमारे जो हिंदुस्तान जो भी फेस्टिवल होते हैं वो हैं। अगस्त से शुरू हो यस, जाते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब अगस्त सितंबर दिवाली आती है अक्टूबर लोगों को से। लोन लगता है, पैसा लगता है, लोग सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, अब लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो उस समय पैसा ज्यादा लगता है। तो आपका कहना है ऐसे कि जुलाई अगस्त से लेके फरवरी मार्च तक शादियां होती हैं जैन के बाद, तो उस समय ज्यादा प्रमोशन एक्टिविटीज होती है। ओके, हाँ, यस। तो बेसिकली कैसा होता है, अप्रैल में यूजुअली बैंकिंग में ना, अप्रैल मार्च, प्रीवियस ईयर के मार्च में हम लोग बजट्स और कैंपेन्स
पॉज कर देते या फिर स्लो डाउन कर देते, स्केल डाउन कर देते, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का बजट डिस्क्लोज नहीं हुए रहते हैं, उनको अभी पता नहीं रहता है कितना आने वाला है, क्या आने वाला है। तो ये सारी डिस्कशंस के लिए अप्रैल मंथ इज अ वेरी स्लो मंथ, जहाँ पे हम लोग मिनिमम स्पेंड करते हैं, सो दैट गूगल पे या फेसबुक पे अपना जो भी लर्निंग है वो जाए नहीं, कोई पॉज नहीं होता, कैंपेन हमेशा चालू रहता है, जस्ट स्केल डाउन करते हैं हम लोग। मई जून तक हम लोग इतना प्लानिंग कर सकते हैं कि अपने को अगस्त से जो स्टार्ट करना है, प्रमोशन जो स्टार्ट करने फुल फ्लेज, वो मई जून में हम लोग इतना कैंपेन स्केल अप कर देते हैं कि हम लोग को अगर डबल करना है, जो भी अपना रन रेट चल रहा है उसे डबल करना है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगस्त सितंबर के बाद से हमारा एक्चुअल कैंपेन चालू होता है। अभी इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कैंपेन पे क्या करना है। अभी समझो जैसे आई मोबाइल का कैंपेन हम लोग ने किया था। आई मोबाइल पे क्या था, आई मोबाइल पहले सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर्स के लिए था, उसको अभी हम लोग ने सारे कस्टमर्स के लिए ओपन किया, मतलब एनटीबी नॉन नॉन बैंकिंग यूजर्स के लिए भी हम लोग ने ओपन किया था। तो वो हम लोग को बिग बैंग कैंपेन करना था, एक ब्रांड कैंपेन करना था, अवेयरनेस सबको दिखना चाहिए कि अरे आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल सबके लिए है। तो ये जब ब्रांड कैंपेन्स आते हैं ना, ऐसे साल भर में 2 या 3 ब्रांड कैंपेन्स आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग होती है, और इसका आउटकम इन टर्म्स ऑफ लीड्स नहीं रहता, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस रहता है, इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम रहता है, वो ऐसे सारी चीज़ें हम लोग करते थे। तो ये जो ब्रांड कैंपेन होते थे, ये ऐसे इसका बड़ा कैंपेन होता था, ये एक अगस्त में होता था और एक दिसंबर नवंबर-दिसंबर में एक होता था और एक मे बी फेब एंड में ऐसे टाइप्स होता था, बिकॉज़ मार्च में भी प्रमोट करते थे। ऐसे 3 कैंपेन्स, और बाकी तो बीएयू जो रेगुलर कैंपेन चलते हैं, वो तो चलते रहते हैं। तो निखिल जी, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, आपने बोला हैवी स्पेंडिंग था या बड़ा स्पेंडिंग था, तो बड़ा स्पेंडिंग मतलब एक अंदाजा दे सकते हो क्या कि आईसीआईसीआई बैंक जो इंडिया का 3rd या 4th लार्जेस्ट बैंक है, इस लेवल का बैंक साल को, जैसे जैसे आपने ये आई मोबाइल का जो ऐप था जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को ये बताना कि ये ऐप सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक यूजर्स के लिए नहीं है, ये ऐप आप सभी के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे आपका जो ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने ब्रांड अवेयरनेस में यूट्यूब रन किया होगा, अपनी इमेज एड्स रन की होगी, वीडियो एड्स रन की होगी, मोबाइल एप्स एड्स रन की होगी। तो एक अंदाजा आप बता सकते हो कि किस लेवल का पैसा आप लोग स्पेंड करते हो कि वाह हाँ इतना स्पेंडिंग होता है, तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को ये भी अंदाजा आ जाएगा कि बड़ी बड़ी बैंक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कितना पैसा खर्चा करती है। और थोड़ा बहुत आप टीम के बारे में बताओगे क्या, आपके आईसीआईसीआई बैंक में जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करते हैं या डिजिटल प्रमोशन एक्टिविटीज हैंडल करते हैं, वो टीम का साइज कितना है, कितने लोग होते हैं, हर साल कितना हायरिंग होता है, थोड़ा सा उन पे भी जरा आप बताओगे क्या चीजें। ठीक ठीक है। मैं आईसीआईसीआई बैंक का बताता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक, ये मेरे डेक में भी एक है जो जिससे तुमको अंदाजा लगेगा कि कितना स्पेंड हो रहा है। तो ओके। आईसीआईसीआई बैंक में तो डिजिटल टीम का स्ट्रक्चर ऐसा था कि हम लोग का जो टीम था, इसमें एक की अकाउंट मैनेजर्स होते थे, जो एवीपी या फिर उसके ऊपर के लेवल के होते थे, जिनके पास हाँ, थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट्स आपने होते थे। सीएमओ के बारे में बात किया था गाइस, सीएमओ आप लोगों को बता दो, सीएमओ स्टैंड्स फॉर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। बराबर है। तो यस। सीएमओ, हाँ हाँ ठीक है, चलो बढ़िया आगे। तो सीएमओ जो होते हैं ना, वो तुम्हारा सारा मार्केटिंग, बिजनेस एंड तुम्हारा ब्रांडिंग, सारी चीजें उनके वो हेड करते हैं। उनके अंडर जो होते हैं ना, उनके हाँ अंडर अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, जैसे हेलो ऑफलाइन है, हाँ बोलो ऑनलाइन है, डिजिटल है, वो सारी चीजें। जो डिजिटल वाला पार्ट था, वो डिजिटल एक हेड होता है, डिजिटल हेड के नीचे एवीपीज नहीं रहते हैं। वर्किंग हूँ, मेरा बिजनेस है खुद का, मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रहा था कि कुछ अलग सो एवीपीज रहते हैं उनके नीचे, और एवीपी के अंडर एक एक टीम रहती है, मे बी 4 जन की टीम, 3 जन की टीम। तो आई वाज पार्ट ऑफ एन टीम व्हेन आई स्टार्टेड, मैं वो टीम के अंदर था, एवीपी के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास प्रोडक्ट्स अलग अलग, हर एक एवीपी के पास अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, आई मोबाइल हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारे एक एक प्रोडक्ट इनके पास होते थे, और ये प्रोडक्ट का सारा डिजिटल प्रमोशंस ये टीम करेगी। तो मेरी टीम जो थी, मेरे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स थे, एक क्रेडिट कार्ड था स्टार्टिंग में, और एक आई मोबाइल था, आई मोबाइल ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन जो भी करना है डिजिटल पे, जो भी करना है, वो हमारी टीम करती थी। अभी हमारे टीम में एक जन था जो क्रिएटिव बना के लेता था, एक जन था जो एजेंसी के साथ सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए था, एक जन था जो पूरा मैनेज करता था एज एन होल। तो हम लोग सारी चीजें डिवाइड करके लेते थे। अभी जो मेरा काम था, जो मैं करता था,
मेरा ये था कि हम मेरे को ये तीनों जो 4 जन है इनको मैनेज करके पूरा एजेंसी से काम करवाना और प्रोडक्ट टीम से काम करवाना। प्रोडक्ट टीम से जो भी इनपुट्स आता है, जो भी आता है, ये सारी चीजें मेरे को करनी थी। तो हम लोग क्या करते थे, आई मोबाइल के केस में ऐसा हुआ था कि हम लोग को बोला था कि आई मोबाइल एनटीबी के लिए चालू हो रहा है, इसका हमको बड़ा कैंपेन करना है। अभी बड़ा कैंपेन क्या होता है और नॉर्मल रेगुलर स्पेंड्स क्या होता है इन द बैंकिंग सेक्टर में होता है। आई मोबाइल के केस में जो रेगुलर बजट स्पेंड करते हर मंथ में जो स्पेंड करते थे, वो अराउंड फॉर ऐप मार्केटिंग, फॉर जो भी ऐप का प्रमोशंस होता है गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जो भी हम लोग प्रमोशंस करते थे, विच यूज टू बी अराउंड 50 lakhs to 75 lakhs के रेंज में होता था। एवरी ये हम मंथ? लोग एवरी मंथ मतलब ये छोटा बिकॉज कैंपेन था? यस सर, 50 लाख से 70 लाख रुपए का? यस सर, यस, बाप रे। बिकॉज वॉल्यूम उतना है ना, उनको बिजनेस हम्म, उतना बड़ा करना था, तो ये हम्म। हम लोग इतना स्पेंड करते थे। और जब ब्रांड कैंपेन आया तो और ब्रांड ऑल कैंपेन ओवर में इंडिया? ऑल ओवर इंडिया ये सब, क्योंकि ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन कैंपेन करते हैं ना, ये बेसिकली हम लोग पैन इंडिया करने को ट्राई करते हैं सो दैट वी गेट मैक्सिमम ऑडियंस आउट ऑफ इट। अभी हम्म, इस पे भी डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू डू अ सर्टेन ज्योग्राफिकल टारगेटिंग, जैसे हम्म, कोई अगर साउथ के स्टेट में करना है सिर्फ, हम्म। कि पोंगल आया है तो पोंगल में मेरे को कोई एक ऑफर डालना है तो वहां पे है, तो मैं सिर्फ पोंगल साउथ में है तो मैं वहां पे ही करूंगा। ऐसे हम्म। वाले होते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स होते हैं, बट यूजुअल सिराने में सारे होते हैं। तो जो ब्रांड कैंपेन जब आया तो ब्रांड हमको सारा डिजिटली करना था। अभी ब्रांड में डिजिटल करना है, सबको दिखना चाहिए, तो मेन है तुमको वीडियो कैंपेन्स करना। वीडियो कैंपेन्स में बड़ा सबसे बड़ा यूट्यूब है, हॉटस्टार है, तुम्हारा फेसबुक है, और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम, Amazon प्राइम वगैरह बाकी की जो भी है वो। हाँ, बट प्राइम नेटफ्लिक्स पे अभी नहीं कर सकते तुम, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है वो, तुमको अलग से करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स पे तो नहीं कर सकते। प्राइम पे भी आई एम नॉट श्योर, प्राइम पे भी अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ रहेगा। ओके। बट हम लोग मेजरली हॉटस्टार, जियो, अभी तो जियो सिनेमा आ गया है, हॉटस्टार, जियो, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पे ही मेजरली हम लोग स्पेंड करते थे। अभी हम्म। स्पेंड करते थे इन टर्म्स कि यूट्यूब पे अगर स्पेंड करना है तो मैं यूट्यूब पे मेरा बजट यूज टू बी अराउंड 1.5 CR 2 CR के रेंज में होता था, हम लोग यूट्यूब पे कितना? करते थे। 2? 1.5 CR तक हो जाता था यूट्यूब, एवरी मंथ? तो एवरी मंथ। तो ये ब्रांडिंग कैंपेन यूजुअली कैसा होता है, ब्रांडिंग कैंपेन इज नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड, ब्रांडिंग कैंपेन इज यूजुअली फॉर 6 to 8 वीक्स। इससे ओके। ज्यादा 6 वीक्स इज मैक्स होता था, यहाँ पे हम लोग ब्रांडिंग करते थे, बिकॉज उससे ज्यादा स्ट्रेच करने की भी जरूरत नहीं होती है। ब्रांडिंग कैंपेन कैसा होता है, थोड़ा सा लोगों के ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये है आई मोबाइल है, आई मोबाइल है, आई मोबाइल। रिकॉल होना चाहिए, ऐड रिकॉल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बेस्ड कैंपेन होता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी करोगे उतना तुम्हारा रिकॉल ज्यादा होएगा, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा वेव आउट हो जाता है, रिकॉल तुम्हारा वेव आउट हो जाता है। तो मैक्स कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये तुम्हारे हर एक ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार लोगों को ऐड दिखना चाहिए। हम्म। तो जो बजट होता था, ओवरऑल बजट जो मैंने मैनेज किया था इन आई मोबाइल, इट वाज अराउंड 60 CR, विच वाज ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। हम लोगों ने किया था 6 मंथ्स पे, जिसमें मतलब पेड, 6 महीने में आपने 60 करोड़ रुपए खर्चा किए? 60 करोड़ रुपए? यस यस, 60 CR था। ब्रांडिंग उसमें से 35 था, बाकी तुम्हारा रेगुलर जो बीएयू कैंपेन चलते थे वो थे। ओके। तो ब्रांडिंग में 35 CR हम लोग ने जब स्पेंड किया था, वो ये सारे प्लेटफॉर्म पे किया था। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि मेरे को मेरा ब्रांड का वीडियो दिखे, मेरा ब्रांड का बैनर दिखे, और मेरे लोग कोई भी बैनर पे क्लिक करके मेरे आई मोबाइल पे जाए या फिर मेरे वेबसाइट पे जाए, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि आई मोबाइल होता क्या है। यही या मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे मेरा जो निखिल जी, मुझे एक हमारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना था, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग सुन रहे हो, निखिल जी जो बोल रहा है यहाँ पे, निखिल इज सेइंग दैट ही हैज स्पेंट अराउंड 60 करोड़ प्लस ऑफ अमाउंट इन 6 मंथ्स। तो एवरेजली उसने जब ब्रांडिंग कैंपेन रन किए थे, तो ब्रांडिंग कैंपेन के लिए उसने बोला 35 करोड़ का बजट था 6 महीने के लिए। तो एवरेज बजट अगर आप देखोगे तो एवरेजली उन्होंने स्पेंड किया होगा 6 से 7 करोड़ रुपए हर महीना। तो सोचिए आप लोग, जब 6 से 7 करोड़ रुपए एवरी मंथ आप स्पेंड करते हो, तो यूट्यूब, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के जो मैट्रिक्स होते हैं, उसमें आपको कितना डेटा दिखता है। और ये डेटा देख के आपको बहुत सारा
ट्रेंड समझ में आता है। तो आप जब पेड कैंपेन्स के इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कितना स्पेंड किया है, कितने स्पेंडिंग पे काम किया है। इससे ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीजन क्या होता है, ये हम लोग निखिल राजे को ही पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मच मनी हैव यू स्पेंड ऑन पेड कैंपेन्स। तो निखिल जी, ये इतना स्पेंड करने के बाद आपको क्या ट्रेंड समझ में आती है? जैसे आपने यहाँ पे बोला कि आपने 60 करोड़ रुपए स्पेंड किए, 60 करोड़ ऑफ अमाउंट इज सच अ बिग अमाउंट गाइस। तो इतना अमाउंट स्पेंड करके आपको क्या इंसाइट्स मिलता है? और जब ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत जगह पे कि कितना स्पेंड किया, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीजन क्या होता है? ये इस पे जरा आप बात बोलोगे क्या निखिल जी? ठीक। तो देखो, कोई भी इंटरव्यू में जब तुम जाते हो और तुमको जब ये क्वेश्चन आता है, बाकी सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज वाइज तो सब लोग तुम रट्टा मार के भी जा सकते हो और तुम लोग कर भी लोगे और तुमको आता भी रहेगा इन केस। बट जब स्पेंड्स पूछते हैं, स्पेंड्स पूछने का रीजन ये होता है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, इसने अगर समझो मेरे को बोला कि मैंने 10 लाख का ही स्पेंड किया है, बट 10 लाख का स्पेंड करके क्या किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 60 करोड़ का किया है बट मेरा 60 करोड़ का लर्निंग ही नहीं है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और वो इंटरव्यूअर को पता रहता है कि तुम जब बोलते हो कि तुम 60 करोड़ किए या 10 लाख किए, तो वो तुमको ऐसे सवाल पूछेगा कि वो 10 लाख के लेवल पे भी हो, वो 60 करोड़ के लेवल पे भी हो, उसको पता होता है। तो तुमको 10 लाख के लेवल पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है 10 लाख का किया ना, तो 10 लाख पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अभी 60 लाख पे मेरा 60 करोड़ पे ऑब्जेक्टिव अलग था, 10 लाख पे ऑब्जेक्टिव अलग होगा। 10 लाख पे ऑब्जेक्टिव होगा मेरे को हार्ड कोर परफॉर्मेंस आना चाहिए, मेरे को 10 लाख पे मेरे को 10,000 लीड्स आने चाहिए। ये ब्रांड का ऑब्जेक्टिव था। ये तुम बोलते टाइम ऐसा बोल सकते हो कि ब्रांड ने, जो भी ब्रांड पे मैंने काम किया 10 लाख का स्पेंड्स, मेरे ब्रांड का ऑब्जेक्टिव था मेरे को 10,000 लीड्स लाके देने हैं, जो लीड्स से कोई कन्वर्जन आए। मैंने 10,000 का टारगेट था, 10,000 पे मैंने 12,000 करवाए और इसमें से मैंने इतने इतने कन्वर्ट किए। और मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से किया और कौन सा प्लेटफॉर्म उस पे फ्रूटफुल था। अगर देखोगे इंटेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे यूजर खुद जाके सर्च करता है या खुद जाके रिसर्च करके क्लिक करके तुम्हारे ऐड पे आके जाता है। ये कौन सा प्लेटफॉर्म हुआ, गूगल सर्च। ये बहुत ज्यादा इंटेंट ड्रिवन होता है। तो इंटेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, तुम्हारा कोई भी कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत कम आता है, सबसे कम आता है। और उसके बाद आता है तुम्हारा बैनर्स, उसके बाद वीडियोस, और वो ऐसे ऐसे सब हायरार्की में। तो तुमको ये सारा प्लेटफॉर्म लेवल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जहाँ पे तुम ये एक्सप्लेन कर पाओ कि मेरे को हर एक बेसिक चीज पे मेरे को अंडरस्टैंडिंग था, मैंने ये चीज की थी। और तुम्हारे पास कोई ऐसा कैंपेन का लर्निंग होना चाहिए जिसमें से तुम बोलो कि ये मेरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, या मैंने चलो 100 रुपए पे मेरा लीड आ रहा था, मैंने ऑप्टिमाइज करके उसको मैंने 60 पे लेके आया। ये मेरा लर्निंग था, ये मेरे वजह से हुआ, और मेरे वजह से वो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना सेविंग्स हुआ, ये तुमको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अभी तुमने स्टार्ट किया तुम्हारा पेड कैंपेन से, कितना स्पेंड किया, बट तुमने वो सिनेरियो को प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके आए। तो ऐसा कनेक्ट तुमको करने आना चाहिए, और ये कब होगा, जब तुमने एक्चुअल में वो चीज किया रहेगा। यस अभी गाइस। मैं मेरा बताता हूँ कि जो मैं 60 करोड़ का मैंने जो बताया कि मैंने इतना स्पेंड किया था, इसमें मेरे पास 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था वीडियो हेवी कैंपेन। वीडियो हेवी कैंपेन में क्या था, मेरे को सबसे ज्यादा मेरा कैंपेन का मैंने ऐड बनाया था, जिसमें मैंने सेलिब्रिटीज हम लोग ने लिए थे। वो टाइम पे आयुष्मान खुराना था, अभी अनिल कपूर चल रहा है आई मोबाइल के लिए। तो हम लोग ने तभी सेलिब्रिटीज को लिया था, सेलिब्रिटीज से शूट करा के उनका एड्स बनाया था और वो हम लोग ने प्रमोट किया था। तो हम लोग को ये था कि सबसे ज्यादा लोगों को ये एड दिखे। पहला ऑब्जेक्टिव वीडियो व्यूज सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो जितने ज्यादा वीडियो व्यूज और जितने यूनिक वीडियो व्यूज, वो मेरा इंपॉर्टेंट टारगेट था। सेकंड टारगेट मेरा ये था कि विजिट्स, कितने लोगों ने मेरे लैंडिंग पेज पे आए या मेरे ऐप पे आए, ये इंपॉर्टेंट था। विजिट्स कितने लोगों ने किया। और थर्ड था मेरा परफॉर्मेंस बेस्ड टारगेट, कितने लोगों ने, सबसे ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया रजिस्टर किया और आगे वो ऐप यूज किया। ये मेरा टारगेट था। हर एक टारगेट को मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के लेवल पे ड्रिल डाउन किया था। हर एक प्लेटफॉर्म का मेरे को हर महीने का, हर वीक का टारगेट था। जब तक मैं ये नहीं कर सकता था, तब तक मेरा वो 60 करोड़ का बजट मेरे को यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिलने वाला था। इस सारी चीजों की 60 करोड़ की प्लानिंग 2 महीने पहले से करनी पड़ती है, तब जाके ये होता है।
Just give me a minute. Sorry. तो ये जब प्लानिंग इतने अच्छे लेवल की होगी, तब वो 60 करोड़ का एग्जीक्यूशन होगा और हर एक छोटी-छोटी तो चीजें एक देखनी एक क्वेश्चन पड़ती। निखिल जी, आप जो प्लानिंग बोल रहे हैं, इसी चीज को मीडिया है प्लानिंग और मीडिया बाइंग कहते हैं क्या? यस, नॉट जस्ट मीडिया प्लानिंग, इसमें तुमको बहुत सारे टीम्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी जैसे हम लोग को आई मोबाइल करना था, आई मोबाइल प्रमोट करने के लिए एक आई मोबाइल की प्रोडक्ट टीम होती है हम्म, जो प्रोडक्ट बनाती है। उनके पास प्रोडक्ट बनाती है मतलब क्या, उनके पास पता है कि चलो मेरे को पूरे बैंक, जो फिजिकल बैंक था जो स्टार्ट मैंने किया था ये अपना सेशन, फिजिकल बैंक को मेरे को ऐप पे लेके आना है। तो मेरे को कौन से फीचर्स लगेंगे, वो सारी चीजें वो लोग विजुअलाइज करते हैं कि हमारे को ये चीज करनी है, एफडी खोलना है, क्रेडिट कार्ड करना है, सब वो लोग फंक्शनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, मेरे को ये करना है। एक टेक टीम रहती है जो ये ऐप बनाती है। प्रोडक्ट टीम टेक टीम को बोलती है मेरे को ये ऐप बना के दो, वो लोग ऐप बनाती है। टेक टीम ऐप बनाने के बाद बोलती है ये ऐप रेडी है, अभी इसको प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट कौन करेगा? डिजिटल टीम करेगी। तो डिजिटल टीम जब आती है, तो डिजिटल टीम ये दोनों टीम से कोऑर्डिनेट करती है। अभी ऐप प्रमोशन अगर करना है, तो तुम डायरेक्टली ऐप प्रमोशन गूगल पे डायरेक्ट कैंपेन नहीं कर सकते, यूएसी कैंपेन अलग टाइप का कैंपेन होता है। अगर ऐप प्रमोट गूगल पे करना है तो, और इवन फेसबुक पे भी करना है तो एक अलग टाइप का ऐप कैंपेन्स होते हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं, ट्रिपल ए कैंपेन्स होते हैं उसमें। तो ये सारे कैंपेन्स को ट्रैकिंग जो होता है, ये ट्रैकिंग एक थर्ड पार्टी टूल से करते हैं। एक थर्ड पार्टी टूल क्या होता है कि कोई भी ऐप का अगर इंस्टॉल हो रहा है और उसके इन ऐप इवेंट्स मतलब इंस्टॉल करके कोई रजिस्टर कर रहा है, केवाईसी कर रहा है, आधार वेरिफिकेशन कर रहा है, आगे जाके वो फंड ट्रांसफर कर रहा है, क्यूआर स्कैन कर रहा है, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसको बोलते हैं इन ऐप इवेंट्स। ये इन ऐप इवेंट्स का टारगेट्स होता है। ये करने के लिए तुमको एक थर्ड पार्टी टूल होता है जहाँ पे तुम ये इंटीग्रेशन करोगे ऐप का, जिसपे वहां पे पता चलेगा कि तुमने क्या क्या किया, और वो थर्ड पार्टी टूल के थ्रू तुम इन ऐप इवेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये सारा फंक्शनलिटी थोड़ा सा तुमको ऊपर से जाएगा, बट ये होता है। ये करने के लिए थर्ड पार्टी टूल इंटीग्रेशन डिजिटल टीम करती है, जो हम लोग ने किया था। ये करने के बाद हम लोग ऐप प्रमोट करते हैं। ऐप प्रमोट करने के लिए तुमको एजेंसी इन्वॉल्वमेंट लगता है, एजेंसी के साथ फिर तभी मीडिया प्लानिंग होता है। एजेंसी को बोलते हैं कि हमारा ये ब्रीफ है, हमारा ऑडियंस ये है। वहां पे मेरा ऑडियंस था 23 to 45, ये मेरा ऑडियंस बेस है, क्योंकि 23 एंड अबव लोग ज्वाइन कर चुके रहेंगे, जॉब स्टार्ट अर्ली जो जॉब रहेगा, और 45 के लोग तक टेक सेवी रहते हैं जो लोग करते हैं, ऐप यूज करते हैं। 45-50 के बाद लोग यूजुअली ऐप ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर आप आपके मम्मी पापा को देखोगे तो वो लोग इतना ऐप पे नहीं करते, वो लोग को अभी भी बैंकिंग सर्विसेज यूज है जो रेगुलर तो सर्विस करते तो एक एक क्वेश्चन पूछना है निखिल राजी जी, आपने बोला अभी कि आप ये सब एजेंसी को बोलते हो, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ये सब काम किसी दूसरों को आउटसोर्स करता है और उनको अपना टारगेट ऑडियंस बताता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हैं। यस, आउटसोर्स करते हैं, बट जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो आईसीआईसीआई टीम के पास होता है कि उनको प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमको पता है कि हमारा ये ऑडियंस है, अभी ये ऑडियंस लर्निंग कहाँ होता है? ये ऑडियंस लर्निंग आईसीआईसीआई बैंक में होता है। हम्म, आईसीआईसीआई बैंक में देर इज अ सेंट्रल बीआईयू टीम, हम्म, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट टीम, हम्म, जिनके पास ये सारे एल्गोरिथम्स रन होते रहते हैं कि मेरा ऑडियंस, मेरे पास ऑडियंस जो है वो क्या क्या कर रहा है, वो उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, वो कहाँ कहाँ पे जाता है, ये सारे पैटर्न्स हमको पता होते हैं। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये सिग्नल्स हम लोग एजेंसी को देते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा ऑफलाइन का पैटर्न है, हम्म। मेरा ऑफलाइन में बंदा ये चीज कर रहा है, अभी वही ऑफलाइन के पैटर्न्स मेरे को ऑनलाइन करवाने, तो ऑनलाइन में तुम लोग ये पैटर्न्स फॉलो करने के लिए क्या कर सकते हो। तो ये हम लोग सारी चीजें डिस्कस करके एजेंसी को बोलते हैं कि हम लोग को मीडिया प्लान इसके बेसिस पे दे। और फिर वो लोग एक मीडिया प्लान लेके आते हैं, और वो मीडिया प्लान पे हम लोग फिर आगे जाके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना सिर्फ कैंपेन लाइव करके छोड़ देना नहीं होता है, उसमें डेली मॉनिटर करना होता है, उसमें नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, हर वीक में कितना टारगेट है, मंथली क्या टारगेट अचीव हो रहा है, मैंने जो इनिशियली प्लान किया था वर्सेस मैंने अभी तक कितना अचीव किया है, मेरा कितना शॉर्टफॉल है। वो बहुत डेली के लेवल पे काम होता है। इसके बाद ही तुमको वो तुम्हारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन लेवल पे होती थी, और ये सारा होने के बाद जब मेरा फाइनल कैंपेन एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद एक बड़ा एक प्रेजेंटेशन होता है
टू सीनियर स्टेक होल्डर CMO के साथ, जिसको हम लोग सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं और हम लोग बताते हैं कि चलो हम लोग ने इतना बजट लिया था, ये टारगेट लिया था, उसके अगेंस्ट हम लोग ने इतना ओवर अचीव किया। जब ये ओवर अचीवमेंट आता है ना, और जब तुम खुद से दिखाते हो कि हाँ ये मैंने करके दिखाया है, दैट टाइम यू गेट रिकॉग्निशन इन द बैंक और कोई भी सिस्टम पे, कोई भी कंपनी पे, जहाँ पे तुम बात कर सकते हो। अगर तुम बोल सकते हो कि मैंने ये किया है और एक्चुअल में करना चाहिए, तो ही बात करो, नहीं तो फिर ऐसे हवा में नहीं करना चाहिए। अगर मैंने किया है और ऐसे बोल सकते हो ना, दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। उसके लिए तो ये सारी बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जब आप ये प्रेजेंटेशन दिखाते हो कि वो हमने इतना पैसा लिया था और इतना टारगेट था, इतना हमने अचीव किया, सो दिस इज हाउ यू शो योर सक्सेस स्टोरी टू दैट यस, पर्सन दैट बाबा मैंने ये अचीव कर लिया। निखिल जी, मुझे ये यस। क्वेश्चन पूछना था आपसे कि आप ये सब काम एजेंसीज को क्यों नहीं देते, मतलब इन हाउस ये काम क्यों नहीं करते? जैसे हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ये मुझे बताना चाहूंगा मैं कि आईसीआईसी बैंक इतना बड़ा बैंक है, वेल फंडेड कंपनी है, पैसा बहुत है, they can hire people, then why do these companies outsource the work to some to other agencies? इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? और दूसरी क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी एजेंसी को हायर करते हो, तो फिर वो एजेंसी को कौन से बेसिस पे हायर करते हो? ये दो चीजों के बारे में बात करोगे? Guys, if you have any questions, you can ask, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन शॉर्ट आंसर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। हाँ, तो निखिल जी, पहला क्वेश्चन मैंने जैसे बोला कि आप आउटसोर्स यस, क्यों करते हो, और दूसरी चीज, अगर आउटसोर्स करते हो तो कौन से बेसिस पे आप ये एजेंसीज को हायर करते हो, मतलब एजेंसी सिलेक्शन कैसे होता है? ठीक। तो देखो, बेसिकली फंडा ये होता है कि बैंक बड़ा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इन हाउस क्यों नहीं करते? तो इन हाउस नहीं करने का रीजन ये है बिकॉज देर आर टू मेनी निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व इन अ डिजिटल कैंपेन। अभी डिजिटल कैंपेन में कैसा होता है, सबसे पहला तो तुम्हारा क्रेडिट लाइन होता है। क्रेडिट लाइन कोई भी एजेंसी के पास गूगल फेसबुक का क्रेडिट लाइन होता है कि वो लोग 30 डेज में, 60 डेज बाद वो लोग पे कर सकते हैं। बैंक को क्रेडिट लाइन नहीं मिलता, बैंक को अपफ्रंट पे करना पड़ता है, अपफ्रंट क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी पेमेंट सोर्स है उनसे करना पड़ता है। इसीलिए बैंक प्रेफर करते हैं कि वो एजेंसी के थ्रू करे। सबसे पहला क्रेडिट लाइन है। दूसरी गाइस, चीज क्या होती है? एक मिनट, हाँ, निखिल जी, मैं यहाँ पे सबको क्रेडिट लाइन बोलना चाहूंगा। क्रेडिट लाइन अभी निखिल जी आपने बोल दिया कि माइट भी इन लोगों को अभी तक क्रेडिट लाइन समझ नहीं आएगा। गाइस, जब एजेंसीज होती है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एनीवन फ्रॉम यू पीपल, जैसे अभिषेक जी, आप कोई एजेंसी रन करे हो और आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स है, आपके पास अच्छा खासा स्पेंडिंग करे हो, आप मान लीजिए गूगल एड्स और फेसबुक पे आप हर महीना अच्छा खासा पैसा स्पेंड करो, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक। तो फेसबुक, गूगल एड्स, ये जो कंपनीज है ना, ये ऑब्जर्व करती है कि अभिषेक बहुत सारा बिजनेस ला रहा है इनके लिए, और फिर ये दो कंपनी, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, वैसे ही ये दो कंपनीज आपको ऑफर करती है आपके बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, आपका स्टेटमेंट, आपका जो भी टर्नओवर है, आपका जो भी फाइनेंशियल है, उसके बेसिस पे आपको एक क्रेडिट लिमिट देती है कि हाँ अभिषेक जी, आपकी कंपनी को हम आपको हर महीना 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट देंगे, जिसमें आप इस 1 करोड़ रुपए को यूज कीजिए आपके क्लाइंट्स के लिए, और इसका बिल हम आपको अगले महीने में भेजेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद आप 45 डेज के बाद पैसा पे करते हो, आपको बीच में 40-45 दिन मिल जाता है पैसा यूज करने के लिए, वैसे क्रेडिट लाइन एजेंसीज को मिलता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ये बोल रहा है कि अगर वो खुद एड रन करना चाहेगी 1 करोड़ रुपए का, तो उन्हें अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो किसी एजेंसी के थ्रू जाता है तो उनको यहाँ पे ये 1 करोड़ रुपए पे करने के लिए 30-40 दिन का टाइम मिल सकता है, प्लस म्यूचुअल जो बेसिकली इनके जो रिलेशन बनते हैं, जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का किसी एजेंसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड कंपनी, तो वो एजेंसी वाला रिस्क भी ले सकता है, चलो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ का एड आपके लिए रन करता हूँ और आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। ये एक बेनिफिट आईसीआईसीआई बैंक को हो सकता है। ये सही बोला मैंने रिकिन जी या क्या? यस, 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 करेक्ट। तो ये एक बेनिफिट होता है कि एजेंसी के लिए तो वो हो जाता है कि उनको ट्रस्ट फैक्टर है, उनको उनका पैसा तो मिलने ही वाला है, बट अगेन उनको कंपटीशन पे भी वो लोग एनहांस कर सकते हैं। भाई समझो आईसीआईसीआई का कैंपेन चला है, अगर 2 करोड़ का कैंपेन चला है, तो कल जाके वो लोग एचडीएफसी को जाके पिच करके बोल सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारा कंपटीशन का भी कैंपेन कर रहा हूँ, मैं तुमको भी कर सकता हूँ। तो उनको वहां पे भी इम्पोर्टेंट, एजेंसी के वाइज उनको वहां पे भी वो सारे लिवरेज करने को मिल सकता है। अभी दूसरा ये चीज था कि हम लोग इंटरनली क्यों नहीं करते। अभी इंटरनली कैसा होता है कि एजेंसी में कोई भी एक बड़ा कैंपेन सेट करने के लिए वहां पे एक बड़ा टीम होता है। मानो मेरे को 2 करोड़ का कैंपेन करना है, तो मेरे पास गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, सीओ के लिए, वीडियो के लिए, क्रिएटिव्स बनाने के लिए, फिर ये सारी चीजें के लिए मेरे पास एक 10 से लोग तो मिनिमम होंगे कि ये एक कैंपेन के लिए 2 करोड़ स्पेंड करने के लिए 10 लोग तो काम करेंगे।
अलग अलग चीजों पे, अलग अलग कैंपेन के फंक्शनलिटीज पे। तो बैंक लेवल पे 10 लोग हायर करने का सेंस नहीं बनता। वाई? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट अलग है। हर एक प्रोडक्ट के लिए अगर 10 10 लोग करेंगे तो वो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बैंक क्या बोलता है, मेरे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो ये समझ सके और जो ये करवा सके, rather than जो ये खुद आके करे। there are few banks, there are few partners और मे बी ब्रांड जो खुद करते हैं, जैसे नायका है। नायका में जो टीम है उनके पास एजेंसी नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पे जो खुद करते हैं एग्जीक्यूशन। उनका मानना है कि नहीं, हमको खुद करना है, हम लोग एजेंसी को पैसा नहीं देंगे, हम लोग को खुद करना है। तो वो लोग करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं सेट करूंगा, मैं अगर बोलूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक को क्रेडिट कार्ड कैंपेन चलाना है और मेरे को क्रेडिट कार्ड कैंपेन के लिए मेरे को 10 लोग चाहिए, तो 10 लोग अभी के लिए ठीक है, 2 करोड़ स्पेंड कर रहा हूँ तब तक ठीक है। जब मेरा कैंपेन स्पेंड बंद हो जाएगा तो ये 10 लोग का करूंगा क्या? इनको तो मेरे को बराबर। सैलरी देनी है। यस। हर एक प्रोडक्ट के लिए मैं अगर 10 10 लोग हायर करता रहा तो डिजिटल टीम ही 100 लोग की हो जाएगी, विच इज वॉट द बैंक कैन नॉट अफोर्ड, एंड दैट बैंक शुड नॉट अफोर्ड, बिकॉज उनका बाकी भी सारा खर्चा होता है। इसीलिए यस। बैंक ये अलग टीम हायर करती है जहां से वो टीम एग्जीक्यूट करे, और यहाँ पे वो बंदे बैठे जो उनको सिर्फ मॉनिटर करे कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे जो बैठा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि वो सही हो रहा है या नहीं है। इसीलिए बैंक हायर नहीं करते यूजुअली। और अभी का रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से जो हो रहा है, बैंक हायरिंग एजेंसी से करवा रहे हैं, एजेंसी वाले लोग करवा रहे हैं। तो जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता है कि वहां पे क्या चलता है, कैसे एनवायरमेंट है, इनको इसीलिए एग्जीक्यूट करने के लिए इजी हो जाता है कैंपेन। ये सारा रीजन है जो बैंक नहीं करते। और प्लस इवन बैंक का ये भी होता है कि हमको साल का एक टारगेट है, वो साल का टारगेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। अभी अचीवमेंट में भी इवन अगर किसी को प्रमोशन करना है तो प्रमोशन के लिए एक बेल कर्व होता है या फिर हायरार्की होती है कि किसको कितना प्रमोट करना है, किसको कितना रेटिंग्स देना है। हर एक बैंक में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एक सेम लेवल के बंदों को एक रेटिंग मिलती है, और उनके रेटिंग की जो बेस्ट रेटिंग रहती है उसको ज्यादा बोनस भी मिलता है, ज्यादा पर्क्स मिलते हैं, और उसको प्रमोशन भी मिलता है। तो अगर मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के लिए इतने बंदे रहे और सभी लोग सेम काम कर रहे हैं, तो प्रमोशन कैसे करोगे, सबका पैसा कैसा दोगे, ये सारी चीजें होती है। इसलिए बैंक ज्यादा ये सब करती नहीं है, इतने लोग लेते नहीं है। तो बैंक क्या करते हैं, ये एजेंसी हायर करते हैं। एजेंसी हायर करने के बाद एजेंसी को क्या प्रॉफिट है इसमें? एजेंसी तो बोल रही कि चलो बाबा मैंने कैंपेन किया, मैंने तो 2 करोड़ स्पेंड किए, एजेंट मेरे को क्लाइंट ने दिया 2 करोड़। बट एजेंसी कमाते कैसे है? एजेंसी उसकी ओवर एंड अबाउ एजेंसी कमीशन चार्ज करते हैं, विच इज सम परसेंटेज ऑफ द मीडिया स्पेंड्स। अभी मीडिया स्पेंड्स मैंने जैसे 2 करोड़ स्पेंड किया तो मेरे मीडिया स्पेंड्स पे 4%, 5%, 7% ऐसा वो लोग चार्ज करते हैं। वो लोग वो वहां पे वो लोग एजेंसी को जो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे होता है। प्लस दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एजेंसी को क्या होता है कि वो लोग का गूगल फेसबुक के साथ, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच, दे गेट फ्यू क्रेडिट वाउचर्स ऑल्सो। उनके पास कोई वाउचर्स मिलते हैं, कोई क्रेडिट्स मिलते हैं जिसको वो लोग यूज कर सकते हैं, वहां से भी उनको प्रॉफिट मिलता है। प्लस अगर वो कोई पार्टनर्स के साथ काम कर रहे, कोई एफिलिएट बिजनेस कर रहे हैं, तो एफिलिएट के थ्रू एजेंसी कोई ऐसा लेवल पे काम कर सकती है जहाँ पे समझो वो लोग ने डील एक लेवल पे किया है। मतलब समझो अगर 10 रुपीज का मेरे को कोई इंस्टॉल लेके आना है, तो वही पार्टनर के पास जाके वो लोग 8 रुपीज में लेके आ सकते हैं, और एक फाइनल इसको बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारा 2 रुपीज का सेविंग्स करके दिया। तो ब्रांड विल बी ऑलवेज रेडी टू स्पेंड मोर। जितना ज्यादा सेविंग करा के दोगे ब्रांड को, उतना ज्यादा वो स्पेंड करेगा। तो एजेंसी वाइज ये सारा चीजें रहता है कि उनको ये सब करना पड़ता है। इसीलिए वी प्रेफर मोर गोइंग टू एजेंसी rather than doing directly. ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो मेरे पास ना कुछ स्लाइड्स में थे। तो हम लोग जो बेसिक ये है, हम लोग ऐप को कैसे करते हैं। कोई भी ऐप नया क्रिएट होता है तो उसको एक ट्रैकिंग टूल का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन बोला, वो ट्रैकिंग टूल का इंटीग्रेशन होता है। ऐप फ्लायर हम लोग यूज करते हैं। ऐप फ्लायर अगर तुम लोग को समझना है उसके लिए तो अलग उसका अंडरस्टैंडिंग है अलग। हम लोग सर के साथ में भी वो एक नया सेशन या कुछ और हम लोग सेशन रख सकते हैं। वो ट्रैकिंग टूल से हम लोग डिवाइस इंटीग्रेट करते हैं, उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करना पड़ता है। जो डिवाइस व्हाइट लिस्ट होता है उसके बाद हम लोग ऐप का एएसओ करते हैं। एएसओ मतलब क्या होता है?
ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप लोग एसीओ करते हो, एसीओ होता है ये वेबसाइट के लिए होता है। वेबसाइट पे अगर कोई भी नया वेबसाइट बना तो उसको हम लोग क्रॉलर्स डालते हैं, ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे तुम्हारे एसीओ से ऊपर एक तुम्हारा वेबसाइट रैंक हो, इसके लिए करते हैं। वैसे ही ऐप पे भी होता है, जो ऐप बनते हैं वो दो चीजों पे, दो जगह पे डालते हैं मेजरली। प्ले स्टोर जो गूगल का है और ऐप स्टोर जो एप्पल का है। दोनों जगह पे अगर तुम्हारा ऐप सबसे ऊपर दिखना चाहिए तो इसके लिए एएसओ करना पड़ता है। माइक्रोसाइट क्या होता है कि तुम्हारा ऐप है, जैसे ऐप है वैसे ही तुम्हारा एक वेबसाइट बना है, बट पूरा फुल फ्लेज नहीं है, वो छोटा सा, इसलिए बेसिक बेसिक चीजें रहती है, इसलिए हम लोग माइक्रोसाइट बोलते हैं। ये होने के बाद, ये सारा टेस्टिंग होने के बाद, एएसओ माइक्रोसाइट बनने के बाद तुम ऐप लॉन्च करते हो। लॉन्च करना मतलब क्या, तुमने पब्लिकली उसको प्रमोट करना स्टार्ट करना है। तुमने एएसओ के हो गया, तुम्हारा प्लेटफॉर्म्स पे हो गया, अभी तुम पेड कैंपेन के लिए रेडी हो गए। पेड कैंपेन के लिए रेडी हो गया मतलब तुम्हारे बेसिक जो हाइजीन चेक थे वो सारे हो गए, ऐप तुम्हारा सही चल रहा है। अभी तुमको ऐप से ज्यादा यूसेज कराना है, ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स कराने हैं, तो तुम पेड कैंपेन चालू करोगे। साइमल्टेनियसली तुमको ऐप का रेटिंग्स बढ़ाना होगा, वो एएसओ से होगा, बहुत सारी चीजें होती रहती है। ये सारा करोगे तभी तुम्हारा जाके ऐप का प्रमोशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये बेसिक प्रमोशन था जो तुम लोग को करना चाहिए आगे जाके भी बहुत। और जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया सर के साथ, सर ने जो भी क्वेश्चंस किए वो सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गई थी। एक ही पार्ट था मेरे को जो दिखाना था तुम लोग को, वो ये था बजट्स। जो सर आप बोल रहे थे ना कि मैंने 60 करोड़ का बजट किया तो कितना स्पेंड हो रहा है, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ डिजिटल स्पेंड्स वर्सेस द टीवी एंड अदर स्पेंड्स। ये हम लोग लास्ट Okay. 4-5 साल में हम लोग इतना स्पेंड हो रहा है। अगर तुम देखोगे कैटेगरी वाइज, टीवी यूज टू बी द हाईएस्ट स्पेंडर FY19 में, बट उसके बाद वो स्पेंड्स कम होते गए। FY21 में ज्यादा क्यों हुए थे, बिकॉज कोविड था और तभी लोग घर में बैठे थे, तभी लोगों को डिजिटल या बाकी सारी चीजों में करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था, इसलिए टीवी पे बहुत ज्यादा स्पेंड हुआ। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे नेक्स्ट अगले 2 साल में इफ यू सी उसका वापस वो नीचे जा रहा है। ये हो रहा है अराउंड 600 700 800, अभी आ रहा है 250 अभी तक हुआ है। बट डिजिटल पे देखोगे तो डिजिटल पे देखो कितना स्पेंड हुआ है, 1000 करोड़ हो गया है ऑलरेडी। तो ये सारे मिला के भी डिजिटल का स्पेंड्स उससे भी ज्यादा है। दिस इज वेयर यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पेंड्स क्या हो रहा है। और ये जो मैं स्पेंड बोल रहा हूँ ये सिर्फ ये कैटेगरी के लिए, नीचे अगर देखोगे तो ये कैटेगरी के लिए है, जो मेरे वॉलेट एप्स है या पेमेंट एप्स है उसके लिए है ये स्पेंड्स। अगर तुम ओवरऑल डिजिटल इंडस्ट्री का स्पेंड निकालोगे तो वो तो बहुत ज्यादा है, और वो ईयर एंड ईयर 22 to 25% ग्रोथ हो रहा है। तो जस्ट समझो कि कितना ज्यादा स्कोप है डिजिटल में इन टर्म्स ऑफ ब्रांड जो स्पेंड करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जो कितने एक्सपोनेंशियली स्पेंड करेंगे, और तुमको आगे जाके कितना स्कोप है ये तुम समझ लो, इतना होने वाला है। और ये बाकी सारी चीजें भी है। कोई भी अगर कैंपेन करता है तो कैंपेन सिनारियो ऐसा होता है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक कर रहे हैं तो ज्यादा, ये जो है ना, ये ग्राफ जो है ये तुम्हारा जीआरपी है, ग्रॉस रेटिंग प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस रेटिंग होता है डिजिटल, जैसे तुम्हारा बार्क होता है। टीवी पे कोई भी एड चलाओगे तो एक रेटिंग सिस्टम रहती है जो टीवी का मेजरमेंट करती है, वैसे ही जीआरपी ये तुम्हारा डिजिटल का मेजरमेंट है। जितना तुम ज्यादा स्पेंड करोगे उतना तुम्हारा आगे जीआरपी ज्यादा होगा। एक लेवल के बाद तुम स्पेंड कम करते हो। यहाँ पे तुम्हारा हाई डेसिबल कैंपेन चला, क्यों, यहाँ पे आईपीएल होता है। आईपीएल अप्रैल मई में चलता है तो हाई डेसिबल हुआ, उसके बाद सस्टेन हो गया, छोड़ गया। फिर वापस यहाँ पे आईपीएल आ गया तो बढ़ गया, वापस वर्ल्ड कप आ गया तो बढ़ गया। तो ये लोग जिस बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जहां जहाँ पे कोई बड़ा ऐसा इवेंट होता है वहां पे वो लोग इंटीग्रेशन करके वहां पे सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो सबसे ज्यादा रीच मिलता है। अभी हम लोग ने पेजैप के लिए किया था, पेजैप के लिए इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पे अगर तुम लोग ने देखा रहेगा तो पेजैप का एड दिखता है, हॉटस्टार पे दिखा रहेगा और तुम लोग को टीवी पे भी दिखा रहेगा। तो 3 एक्टर्स लिए थे, कपिल शर्मा है, टाइगर श्रॉफ और प्रभुदेवा के एड्स अभी भी चल रहे हैं, अभी भी जियो के लिए हम लोग ने चलाए थे। तो वो हम लोग ने एक्टर्स को शूट करा के हम लोग ने किया था। तो जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना उसको कैप्चर करके वहां पे ज्यादा स्पेंड करके रीच बढ़ाते हैं, और उसके वजह से तुम्हारा
कैंपेन का ओवरऑल रीच होता है। कैसे होता है, कोई भी कर्व है ना, अगर तुम आज 50 के लेवल पे चल रहे हो, तुम जब कैंपेन करोगे तो 50 का 500 होगा, बट कैंपेन पॉज होने के बाद वो वापस 50 पे नहीं आता है, वो 150 150 200 के लेवल पे स्टैग्नेट हो जाता है। तो तुम्हारा जो बेस लाइन था, वो बेस लाइन ऑलरेडी बढ़ गया है, अभी तुमको सस्टेन करना है आगे जाके। तो इसीलिए हम लोग ये जो मैंने बोला था कि 60 करोड़ का कैंपेन किया था, और अभी जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं वो ऐसे ही रहता है, इस यही लॉजिक से करते हैं कि बड़ा कैंपेन आएगा, ज्यादा स्पेंड करेंगे कम टाइम में, फिर वो सस्टेन हो जाएगा आगे जाके। ऐसे सारे बहुत सारे ब्रांड्स है जो करते रहते हैं, उनका क्या स्ट्रेटेजीज होता है। और मीडिया प्लानिंग में हम लोग ये बेसिकली देखते हैं, ऑडियंस जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑडियंस क्या होता है, उसका बिहेवियर मतलब उसका पैशन पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। ऑडियंस में कितना, तुमको क्या क्या एसेट्स है, क्रिएटिव एसेट्स है, एडिट्स है, टेक्स्ट कराउजल्स, वो सारी चीजें होती है। फिर ऑडियंस क्या है, अभी ये मेरे ऑडियंस था, ये जो मैंने HDFC बैंक पेज़ैप के लिए किया था, मेरे पास जो ऑडियंस अवेलेबल था, ये मेरे पास 500 मिलियन का ऑडियंस रजिस्टर्ड यूजर्स है, यूपीआई यूजर्स है। उसमें से मेरे मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कितने थे, ये इतने 256 मिलियन। उसमें से मैंने देखा कि 2 से ज्यादा यूपीआई ऐप यूज करने वाले कितने लोग हैं, तो इतने। और मेरे को जो टारगेट करना है वो मेरा 75 मिलियन का बेस है। तो ये लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपने लेवल पे करते हैं। ये अपने लेवल पे करने के बाद हम लोग ये एजेंसी को देते हैं, फिर एजेंसी एग्जीक्यूट करता है। तो जो तुम अब सर ने आपने पूछा था क्वेश्चन कि हम लोग क्या करते हैं, वो ये हम लोग करते हैं कि हम लोग जो ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग है, ये सब हम लोग को करना पड़ता है। फिर जाके हम लोग ऑडियंस बोलते हैं एजेंसी को, ये मेरे को टारगेट करना है। और फिर हम लोग उसके हिसाब से हम लोग को स्पेंड्स करते हैं कि अभी जो मेरा मीडिया स्पेंड है अराउंड 75 CR का मेरा अभी का स्पेंड है, जो मैं दिसंबर से मेरा कैंपेन चल रहा है, जो अभी मेरा जैन एंड में खत्म हो जाएगा। अराउंड 70 CR में स्पेंड करने वाला हूँ। और अगर मेरे को जितना ऑडियंस ज्यादा, उतना मेरे को ज्यादा स्पेंड करना पड़ता था। मेरे को ये सारा यूजर्स को नहीं करना था, मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स को करना था, इसलिए मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये लॉजिक रहता है। तो ये सब चीजें होती है, किसको टारगेट करना है, मेरे सेट ऑफ ऑडियंस क्या है। तो ये मेरे 3 ऑडियंस है, ये सब अंडरस्टैंडिंग तुमको होना चाहिए। ये अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट समझ के लो, ये तुम लोगों बाद में कर सकते हो, खुद से करोगे जब तुम समझ जाओगे। मेरा ये 3 टाइप का ऑडियंस था, मेल, फीमेल, Guys, you can check out करियर guys the ओरिएंटेड। audience size 25 million. पहले वाला है 25 million audience. Demographics male female age 21 to 30 के age के बीच में के लोग, और जो earlier career professionals है, having basic credit cards, transaction for customer or electronics, food delivery, ऐसा एक audience है। दूसरा audience देखोगे तो 20 million का है, 31 to 40 एज के, होल्ड्स मल्टीपल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, फ्रीक्वेंट फ्यूल रिफिलर्स है। हो सकता है इन लोगों को ऐसे कार्ड देना है जिस कार्ड को थ्रू आपने डीजल या पेट्रोल भरा तो आपको क्या कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। ऐसे लोगों को माइट भी आप वैसे कोई टाइप का कार्ड प्रमोट करते रहोगे। तीसरा कौन सा ऑडियंस है, 29 मिलियन ऑडियंस, मेल फीमेल 21 टू 30 के एज के बीच में के लोग हैं। और यहाँ पे देखोगे अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैविंग ट्रांजिशन फंड, वही ऑडियंस है पहले वाला। ये तो टियर इस 2 है, टाइम टियर मतलब आप 1 है, लोगों टियर को 2। एक समझ में आ रहा है निखिल जी ने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बोल देता हूँ। निखिल जी अभी जो प्रोफाइल पे है मैनेजर, तो वो प्रोफाइल पे वो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होता है। वो क्या कर रहा है, वो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कर रहे हैं। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग मतलब क्या है, वो अपने HDFC बैंक का जो भी कस्टमर्स का बिहेवियर है वो सारा डेटा पुल कर रहा है। उस डेटा को पुल करके देख रहे हैं कि कौन सा ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, कौन सा ऑडियंस क्या बाय कर रहा है, कौन सा ऑडियंस कौन सी चीजों में इंटरेस्ट रखता है, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका साइज क्या है। ये सारा डेटा निकाल के इस डेटा को वो एजेंसी को प्रोवाइड कर रहे हैं और एजेंसी को बता रहे हैं कि ये हमारा ऑडियंस है, इस ऑडियंस को ये पिच करो, इस ऑडियंस को ये पिच करो। दिस इज हाउ they are basically they are planning the strategy, they are making the target audience ready, and the same audience they are pitching to the agencies, and they are trying to achieve the goals or objectives which they have set for their company. तो ऐसे ही चल रहा है निखिल जी। यस यस। हम्म तो तो ऐसा यहाँ ये सब चीजें करना पड़ती है तुम लोग को। क्या Yes, बोलो, नहीं, ये सारा प्लानिंग पे तुमको करना पड़ता है, तब जाके तुमको एजेंसी को आगे जाके तुम ब्रीफ करोगे कि ये हमको चाहिए। ये सारा लर्निंग तुम्हारे पास होना चाहिए। यस। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी हम कुछ क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, जैसे यहाँ पे वी हैव अराउंड 35 पीपल
तो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, अक्षिता, आनंद, अनुजा, आशीष, अविनाश, भाग्यश्री, चंद्रकांत, ऐश्वर्या, अभिषेक, we have a lot of people over, Gaurav, Harshal, Mosmi, Pratik, Pooja, Salman, Shweta, Umesh, Vaibhavji, Nisha, Keul. Guys, if you have any questions, you can now start asking questions. It can be anything related to the interviews, related to the selection, related to the job profile, related to the work, daily work, what you do, क्या team होती है. आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइस, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को. You can ask your questions. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है या वैभव जी पूछिए. जब हम आपका कोर्स करते डिजिटल मार्केटिंग वाला, हम्म. तो हम मतलब करियर में फ्यूचर क्या है, मतलब हमारा, मतलब कंपेयर टू, मतलब हम कितना आगे जा सकते हैं, जो एमबीए मार्केटिंग में करते हैं उनके लेवल पे जा सकते हैं क्या? देखिए, अभी आपके सामने ये एक जो हमने सेशन रखा था, ये सेशन में निखिल जी ने पहले ही इंट्रोडक्शन दिया था कि उन्होंने भी ऐसे कोर्स के साथ ही स्टार्ट किया था. आप कोई भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लीजिए, उसका नहीं. देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग किसी इंस्टीट्यूट से सीखिए, दैट इज नॉट द क्वेश्चन. यहाँ पे आपने खुद को कहाँ तक स्केल किया. जैसे निखिल ने अपना करियर एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू किया था, उसने ये सारी चीजें सीख ली कहीं से पहले, सीखने के बाद किसी एजेंसी में जॉब लग के उन्होंने ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया. वहां पे उन्होंने इन सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग लिया, समझ लिया कि कैसे काम चलता है. वहां से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिला आईसीआईसी बैंक में, जहां पे उन्होंने इन सारी चीजों का, जो भी उनका एक्सपीरियंस था, जो भी उनका नॉलेज था, इसको वहां पे अप्लाई करके धीरे धीरे उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल से डेप्यूटी मैनेजर से मैनेजर पे पहुंच गए. आईसीआईसी बैंक के साथ काम करते करते उनका एक डोमेन रेडी हो गया कि उन्हें बैंकिंग सेक्टर में अभी अच्छा खासा डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया जाता है, ये उनको एक्सपीरियंस आ गया. तो उन्होंने वहां से फिर एचडीएफसी बैंक में जंप कर लिया, क्योंकि आईसीआईसी भी एक बैंक था, एचडीएफसी भी एक बैंक है. तो उनका जो डिजिटल का एक्सपीरियंस बैंकिंग का था, तो वो एचडीएफसी के सामने जब जाके उन्होंने पिच किया कि मैंने इसके पहले भी किसी रेप्यूटेड बैंक के साथ काम किया, व्हिच इज आईसीआईसी बैंक, और वहां पे जो मैंने मेरी स्किल्स यूज की थी, दिस वाज द सक्सेस स्टोरीज व्हिच आई हैव गिवन ओवर दैट. सो उसके बेसिस पे उन्होंने आज एचडीएफसी में जॉब ले लिया, जहां पे वो आज असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पे बैठ के वो अपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव, अभी जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड उन्होंने जैसे एग्जांपल दिया कि उनको इस साल में 50,000 क्रेडिट कार्ड डिस्बर्स करना है, या उनका टारगेट है उनको इस साल 10,000 करोड़ रुपए का लोन देना है. तो फिर वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो मीट करने के लिए कौन से टाइप की ऑडियंस को दिखाना है, आपका प्रोडक्ट किस टाइप की कमर्शियल रन करना है, किस टाइप का बजट रखना है, ये सब वो लोग प्लान करते हैं, और ये काम वो एजेंसी से करवा के लेते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन है कि हमें इसमें क्या ग्रोथ मिलेगा, तो आप देख सकते हो कि एक बंदा पिछले 10-11 साल के एग्जीक्यूटिव लेवल से आज मैनेजर के पोजीशन पे पहुंच गया. तो ये इमीडिएटली नहीं होगा. आप लोगों को ऐसे कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जैसे निखिल ने थोड़ी देर पहले बोला कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद एन एजेंसी, तो एजेंसी में आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, जहां पे आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो. तो एजेंसी के साथ शुरू करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स मिलेंगे. हर एक क्लाइंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होता है, जैसे रियल एस्टेट पेड पे ज्यादा फोकस करता है, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करती है, बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो ईमेल मार्केटिंग, गूगल सर्च, पेड कैंपेन्स, यूट्यूब एड्स, इन सारे प्लेटफॉर्म पे फोकस करता है. तो ये सारी चीजों का एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है. एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी. ठीक है. तो हाय यस, हाय निखिल जी, चंद्रकांत पाटिल दिस साइड. मुझे एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसके पहले मैं एजेंसीज के लिए काम करता था. सेंट्रो एजेंसी था 2019 में. अभी मैं ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, पेपाल. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि एजेंसीज के लिए काम करते वक्त मुझे सारे प्लेटफॉर्म का नॉलेज था, स्ट्रैटेजी से ऑप्टिमाइजेशन तक, गूगल एड्स और ऑल प्लेटफॉर्म. पर इसके बाद ब्रांड पे स्विच होने के बाद वो काफी वन साइड हो गया. मतलब अभी मैं डीएसपीज एंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व हूँ. तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्विच होना चाहिए या प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में कंटिन्यू होना चाहिए? ये पर देखो, प्रोग्रामेटिक में अभी ब्रांड के लिए काम करते वक्त प्रॉब्लम ऐसी है कि काफी चीजों को मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ. एक्सेस तो है, बट आई कांट सी एनी स्पेंड और ऑप्टिमाइजेशन और एनीथिंग. सो इस नहीं देखो, सिचुएशन को करेक्ट करेक्ट. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारा एजेंसी से ब्रांड स्विच कब होना चाहिए, कौन से टाइम पे होना चाहिए, और होने के बाद क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो यही है. लाइक योर सिनेरियो, अभी तुम कैसे करते थे जब एजेंसी पे था, तुमको उतना फ्रीडम था कि तुम कर सकते थे, स्पेंड्स था, तुम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते थे.
जब ब्रांड पे जाते हो तो तुमको रिस्ट्रिक्शंस क्या आता है कि चलो ब्रांड पे तुमको अगर डीएसपी पे ही काम कर रहे हो, प्रोग्रामेटिक पे ही काम कर रहे हो, तो तुमको बाकी सारी चीजों पे करने नहीं देंगे, बिकॉज देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु टेक्स केयर ऑफ अदर थिंग्स। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको सिर्फ डीएसपी पे है तो डीएसपी पे ऐसे बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो प्रोग्रामेटिक से कि जो तुम बाकी टीम्स को इन्वॉल्व करो। जैसे कि सोशल पे, अभी सोशल पे टीम है जो फेसबुक ही कर रही है या फिर जो सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्ट कर रही है, वो तो तुमको कुछ करने नहीं मिलने वाला है बिकॉज वो अलग टीम है। बट सोशल पे तुम ऐसे कोई कैंपेन्स कर सकते हो जो सोशल वाले कैंपेन्स को तुम प्रोग्रामेटिकली करा चलाओ। तुम बोलो कि अच्छा सोशल पे जो तुम्हारा ऑडियंस है, मैं वो ऑडियंस को प्रोग्रामेटिकली चलाता हूँ और मैं तुमको सबसे उससे ज्यादा रीच करा के देता हूँ या उससे ज्यादा रेलेवेंट रीच करा के देता हूँ। तो तुम्हारा इंटरेक्शन होना चाहिए सारे टीम्स के साथ, बट तुमको ये तुम्हारा खुद का जो प्लेटफॉर्म है वो बेचने आना चाहिए। कोई भी चीज तुम्हारी खुद की बेचने आनी चाहिए, तब जाके सामने से कोई आके तुमको बोलेगा कि ओके ठीक है, मैं यहाँ पे भी ट्राई कर सकता हूँ। ब्रांड पे, कोई भी ब्रांड पे जाओगे तो तुमको अगर कोई चीज पे रखा है तो वहां से किसी और चीज पे जाना, स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर तुमको उतना खुद का नॉलेज दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, मेरे को वहां पे जाना है। इंटरनल स्विच होता है, कर सकते हैं, बट ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या चाहिए। तुमको सारी चीजें करने नहीं मिलेगी एक टाइम पे। हर एक ब्रांड के पास वो लिबर्टी नहीं रहता है। मेरे पास था बिकॉज मैं बैंक में था और बैंक को सारे प्लेटफॉर्म्स पे करना था, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता था। पेपाल में नहीं होगा, पेपाल में हर एक टीम अलग अलग होती है, जिसमें तुम्हारा पेड टीम अलग है, तुम्हारा डीएसपी पे अलग चलेगा, तुम्हारा सोशल का अलग टीम रहेगा, एसईओ का अलग टीम है, सब अलग अलग टीम होती है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इवन आईसीआईसीआई बैंक में मेरे को सर्टन लेवल पे था, आईसीआईसीआई बैंक में मैं पेड कर सकता था, एसईओ मेरे को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था बिकॉज एसईओ का टीम अलग था और वो पूरा वर्टिकल अलग होता था, तो हम लोग का इनपुट्स दे सकते थे बट वहां पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा। एचडीएफसी में ऐसा नहीं है, एचडीएफसी में मैं ओवरऑल ब्रांड देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं पेड, एसईओ, वेबसाइट, कंटेंट, ब्रांड सब कुछ देख रहा हूँ, तो वो सारा लिवरेज होता है। तो जैसे तुम, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग होता है, तुम्हारे अभी पेपाल में नहीं है तो मे बी अगर तुम्हारा इतना ज्यादा लर्निंग है, अगर तुमको लगता है कि तुमको स्विच करना चाहिए और स्विच करके ऐसे ब्रांड में जाओगे जहाँ पे तुमको ये सारी चीजें करनी मिलेगी, ऐसे ब्रांड ढूंढो और वहां पे ट्राई करो। या फिर तुम्हारा इंटरनल, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल टीम से तुम लोग ट्राई करो कि बाकी सारी टीम से तुम लोग कैसे लिवरेज कर सकते हो, ऑडियंस तुम्हारा कैसे तुम एनहांस करके दे सकते हो, तो वो सब चीजें हो सकती है। ओके, थैंक यू। निखिल जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर एनी कैंपेन्स हाउ मेनी मंथ्स इन एडवांस डू यू नीड टू वर्क ऑन इट। मतलब कोई भी कैंपेन, जैसे आपको आईपी का या फिर आपको कोई होम लोन का कैंपेन प्लान करना है, जैसे मान लीजिए आपको होम लोन, जैसे लोग मुहूर्त पे घर लेते हैं, तो जैसे कोई भी कैंपेन आपको लॉन्च करना है, उसके कितने महीने पहले आप लोग ये प्लानिंग करते हो? कुछ ऐसा कुछ इस पे बता पाओगे? देखो ये ना, ये बहुत ये डिपेंड करता है तुम्हारे कैंपेन का लेवल पे। अभी तुम्हारा कैंपेन अगर एडहॉक लेवल पे आता है, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हमारे पास आते हैं, प्रोडक्ट टीम से आते हैं, जो आज फ्राइडे समझो, आज सैटरडे है, तो मंडे को मेरे पास ये कैंपेन का ब्रीफ आता है, मेरे को बोलते हैं वेनेसडे को लाइव करना है। वो सिनारियो में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है और तुम्हारे पास उसका लाइव करने के लिए जो भी दो तीन दिन बचे, वो दिन में तुमको करना पड़ता है। बट अगर तुम मेरे को पूछोगे, अगर फुल फ्लेज कैंपेन लाइव करना है, ब्रांड अवेयरनेस और प्लानिंग के साथ अगर करना है, देन आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 15 to 20 डेज पहले हम लोग प्लान स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अभी पेजैप का कैंपेन चालू हुआ है, मेरा दिसंबर में स्टार्ट हुआ है, वो दिसंबर में स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने इसका प्लानिंग स्टार्ट किया था, हम लोगों ने अक्टूबर में। अक्टूबर से हम लोग को प्लानिंग हम लोग ने किया, ऑडियंस निकाला, हम लोग को बजट का अंडरस्टैंडिंग आया कि हम लोग को इतना बजट मिल रहा है। उसके बाद हम लोग ने कैंपेन स्टार्ट किया दिसंबर में। तो अक्टूबर नवंबर ये 2 महीना हम लोग ने प्लान किया था बड़े कैंपेन के लिए, और फिर हम लोग ने दिसंबर से स्टार्ट किया। तो बड़ा कैंपेन है, अगर वेल प्लान हो तो सारा अच्छा एग्जीक्यूट होता है, अगर इम्प्रॉम्प्टो है तो एग्जीक्यूशन हो जाता है बट कहीं ना कहीं कोई चीज रह जाती है, या फिर वो ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए चलेगा नहीं, वो थोड़ा टाइम के लिए चलेगा और मे बी प्रोडक्ट टीम बंद कर देगा या फिर कोई चीज हो जाती है, ऐसे सब होता है। Sir, one question. Am I audible? यस, बोलो। Sir, my name is Gaurav Gaikwad, and I have done my digital marketing course with Rohit sir
in 2023 like Jan यही टाइम था. So it's ठीक है. been a year. And after वो कोर्स मैंने MBA चालू की मेरी in finance हम्म, management. So that's what I wanted to say कि finance and digital marketing, do they gel together or not? Because मैं बोलो. what I wanted to say is digital marketing. I means what I enjoyed doing it, but finance was the prime aspect that I always wanted to achieve in my life. हम्म, Through means हम्म. I wanted to do my post graduation degree in finance only. So that's what I wanted to say. Does digital marketing and finance management gel together or goes hand in hand in the future in banking sector or any other sectors? So I want some clarity on that. देखो, मैं तुमको मेरा एग्जांपल देता हूँ. मैं Okay. ग्रेजुएट हूँ BSc कंप्यूटर साइंस IT से हूँ. मेरा बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं था. मेरे को ना फाइनेंस से कुछ इतना पसंद था कि मेरे को फाइनेंस करना है, मेरे को ये करना है. मेरा MBA किया मैंने सिस्टम्स में IT में. मेरा सारा बैकग्राउंड IT का था. बट बिकॉज मैंने कोर्स किया था, मेरा डिजिटल अंडरस्टैंडिंग था, मेरा IT अंडरस्टैंडिंग था. एंड वो सारी चीजें जब बैंक में आओगे और बैंक में तुमको जब करना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, बैंकिंग में जब तुमको ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं तो डिजिटली करना है. तुमको Yes. ऐप प्रमोट करना है, बैंकिंग कोई भी ऐप प्रमोट करना है वो डिजिटली करना है. कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है डिजिटली करना है. सारा चीज डिजिटल जब हो रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर अ बैंकिंग. और ये सबसे बेस्ट टाइम है तुमको कोई भी BFSI, नॉट जस्ट बैंकिंग. BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कोई भी BFSI इंडस्ट्री में जाना ये सबसे सही टाइम है डिजिटल करने के लिए. बिकॉज बहुत सारे नए ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारे चीज डिजिटली हो रही है. तो दिस इज द राइट टाइम. अभी तुम फाइनेंस बैकग्राउंड से कर रहे हो, MBA करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुमको उल्टा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का. फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अगर तुम वो प्रोडक्ट्स को डिजिटली प्रमोट करना चाहते हो तो दिस इज द राइट वे टू डू इट. सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा और तुमको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलेंगी. तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. Yes, I'm on the right track, but what I wanted to say, like finance, I think banking में finance मतलब what we say digital marketing, so we have to क्या बोलते हैं उसको, finance का schemes और क्या बोलते हैं अपना financial advisor वो digitally कैसे promote करूँ. That's कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. अभी बेसिक चीजें है. अभी फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करते हैं, तुमको सारी चीजें बताते हैं कि चलो मेरे को कोई म्यूचुअल फंड करना है, SIP करना है, या फिर कोई इक्विटी खरीदना है. ये सारी चीजें बताते हैं. तुमको yes. बोलते हैं कि अरे सर इसमें करो तो तुमको इतना रिटर्न आएगा, इतने महीने में इतना रिटर्न आएगा. ठीक है. अभी ये जो बंदा कर रहा है ये तुमको हाँ. फिजिकली दिखता है सामने. ठीक Yes है. sir. ये यही चीज अगर तुमको ऐप में मिले तो तुम क्यों नहीं करोगे. तुम खुद के नॉलेज पे क्यों नहीं करोगे. ये जो बंदा बोल रहा है ना, आज टेक्नोलॉजी वाइज ये ऐसे एप्स बने हुए हैं जो तुमको ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं. जो HDFC का एक एग्जांपल है, जो तुमको कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है, तुम जाके वहां पे डालोगे, वो ऐप करोगे, तो वहां से तुमको पता चलता है कि अच्छा ये सारे म्यूचुअल फंड्स है जो मैं कर सकता हूँ, ये सारे SIPs में कर सकता हूँ, या ये सारे इसमें मेरे को इतना एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा, 3 साल में इतना रिटर्न मिलेगा. ये सब तुमको पता होता है वो ऐप के थ्रू. तो तुमको सेल्फ सर्व ऐप हो जाता है. तुमको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती. अभी कोई कोई सिनारियो में ऐसा भी होता है कि तुमने किसी पे ब्लाइंडली फेथ रखा कि नहीं सर ले लो, और मार्केट क्रैश हो गया, एकदम से Yes. तुम्हारा स्टॉक वैल्यू गिर गया, तो क्या करोगे, किसको ब्लेम करोगे. तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स वही बोलेंगे सर हम लोग तो सिर्फ सजेस्ट करते हैं, लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर होता है. तो ये जो होता है ना सिनेरियो, ये सिनेरियो तुम्हारे हाथ में होता है. तुम कभी भी ले सकते हो, तुम खुद के लर्निंग के हिसाब से ले सकते हो, और वो सारी चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में होता है. इसीलिए ये सब तुम ऑनलाइन एप्स और ये सब चीजों से तुम खुद सामने से कर सकते हो. Okay. तो Okay sir. व्हाई नॉट गो फॉर इट. Thank you, sir. I will I will think about it in the future. It's like I've श्योर. just started my MBA and I will think about it in the future because even my professor suggested me that if you are good in marketing and also you have the knowledge of finance, then sky is your limit. एग्जैक्टली. Yeah, Nikhil ji, we have a question over here from Abhi. उसका क्वेश्चन ये है कि is there any opportunity for digital marketing freshers in banks? मतलब
बैंक्स डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर्स को हायर करती है क्या? फ्रेशर्स, आई वुड से फ्रेशर्स से ज्यादा इफ यू आर गोइंग, देखो दो चीजें रहती है। फ्रेशर्स, अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो बैंक ज्यादा प्रेफर करती है कि अच्छे कॉलेज वाला फ्रेशर को लेके हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करें। इफ नॉट, देन इफ यू आर रियली केपेबल इनफ कि तुमको बहुत ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा नॉलेज है, और तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से जा रहे हो और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो यस यू कैन वर्क ऑन इट। अभी जैसे मेरा है, मेरे पास अच्छा कॉलेज नहीं था। मेरा कॉलेज नॉर्मल रेगुलर कॉलेज था जो टॉप 25 में भी नहीं आता था, और मेरा कॉलेज का सपोर्टिंग नहीं था। तो उससे क्या होता था, आई कुड नॉट गो एंड टेल कि चलो अच्छा कॉलेज है, मेरे को पैसा ज्यादा दो, मेरे को पैसा कम मिलेगा। बट एट द सेम टाइम मेरा नॉलेज अच्छा था, इसीलिए मैं वो सारी चीजें बोल सका, और इसीलिए मेरे को उनको जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास थी, वो सारा नॉलेज मेरे पास था, तो मेरे को वो लोग ने ले लिया। अभी कोई भी फ्रेशर जा रहा है, अगर उसका बेस अच्छा है, अगर उसको ये सारा लर्निंग अच्छा है, और उसको वो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि चलो क्रेडिट कार्ड पे डिजिटल पे क्या करते हैं, या आई मोबाइल ऐप पे डिजिटल पे क्या क्या चीजें प्लेटफॉर्म करते हैं, ये अगर तुम बेसिक समझ के सीख के अगर तुम इंटरव्यू क्रैक करने जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको एंट्री मिल सकता है। और एक बार एंट्री कोई भी बैंक में एक बार एंट्री मिल गया तो फिर तुम आगे जाके उसको बहुत आगे लेवल पे तुम लोग ऊपर जा सकते हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चंस हम लोग पूछे गए। जैसे एक सलमान से आया और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे इज देयर एनी क्राइटेरिया अबाउट एज और एनीथिंग लाइक बैंक्स हैव यूजुअली, एंड वेयर डू वी गेट नो अबाउट द ओपनिंग्स? देखिए सलमान जी, ये जो क्वेश्चन है ना, बैंक की ओपनिंग्स क्या है, देखो नॉर्मली अभी इनका क्वेश्चन क्या है कि बैंक्स में काम करने के लिए कोई एज लिमिट लगता है क्या, एंड वेयर डू वी नो अबाउट द ओपनिंग्स इन द बैंक सेक्टर फॉर मार्केटिंग प्रोफाइल्स? तो टेलीमार्केटिंग की ओपनिंग्स तो अगर आप देखोगे तो आपको naukri.com, लिंक्डइन पे अगर आप देखोगे ना तो लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग मिल जाएगी। अगर आपको देखना ही है तो डायरेक्टली बैंक्स जो होती है, बैंक्स के ऊपर बैंक्स की वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो तो उसमें करियर का एक टैब होता है जिसमें आपको दिखेगा कि उनके पास करंट ओपनिंग्स क्या है। इसके अलावा लिंक्डइन है, naukri.com है, indeed.com है, यहाँ से आपको ओपनिंग मिल जाएगी। और किसी भी बैंक में अगर आपको काम करना है तो मिनिमम यू नीड टू हैव योर 15 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड वेर यू, और आपका एज 15, मतलब 15 years ऑफ एजुकेशन करते करते आपका 21-22 साल का तो एज हो ही जाता है। तो मिनिमम सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड में काम करना चाहते हो तो आपको 15 years ऑफ एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन लगता है आप लोगों का, और मिनिमम 21 एज आपको लगेगा। और अगर आपको इनकी ओपनिंग देखनी है तो आप किसी भी बड़ी कंपनी का वेबसाइट पे जाके आप उनके करियर्स के सेक्शन में जाके देखोगे तो वहां पे ओपनिंग मिलेगी। उसके अलावा जैसे हमने बात की, आपको naukri.com, indeed.com, यू हैव लॉट ऑफ अदर साइट्स, हाँ, जिसके ऊपर आप ओपनिंग्स चेक कर सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहेगा तो बताइए। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर। सर मैं पूछना चाहता हूँ एक। यस यस, पूछिए। हेलो सर, मैं हाँ दीपक दीपक जी गुरु बात पूछिए। कर रहा हूँ। या दीपक जी पूछिए, निकल जाएगी आपकी। हाँ सर, एक्चुअली बोलो। मैं मतलब मेरे लाइफ के बारे में जो हुआ है ना वो डिस्कस करना चाहता हूँ एक्चुअली। हम्म, जैसे मैंने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मैंने बीसीए कंप्लीट किया है। और उसके बाद मुझे सडनली एक्सिस बैंक में जॉब मिला था, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव करके। तो वो एक जॉब का, और एक एक्सिस मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड था, तो उस एक्साइटमेंट में मैंने वो सेल्स का जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीसीए करके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आईटी सेक्टर में एजुकेशन करके मैं बैंकिंग फील्ड में चला गया, और वहाँ से मेरी सेल्स की शुरुआत हो गई। तो मतलब मैंने कम से कम 4 से 5 साल मैंने सेल्स में वर्किंग किया एज ए फील्ड सेल्स में। लास्ट मेरा वर्किंग था जस्ट स्टाइल में, आईटी सेल्स में। तो मतलब उस फील्ड में मेरा बहुत स्ट्रगल हो गया था। तो एक्चुअली मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन द एज ऑफ 31 मैंने ये डिसीजन लिया कि एक स्टेप में बैक आके जो मैंने एजुकेशन किया है मैं उसी फील्ड में मेरा करियर ग्रो करता हूँ। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड चूज़ किया। तो ये मेरा डिसीजन मतलब राइट था, या अभी मेरा 31 एज है, और मैं इस एज में अभी मैंने फिलहाल इंटर्नशिप ज्वाइन किया है एक मार्केट रिसर्च कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो वो कंप्लीट करके आगे मेरे लिए कुछ चांसेस है, या फिर मेरा एज मैटर करेगा, या कुछ ग्रोथ होने के चांसेस है या नहीं मेरे लिए? देखो अगर तुम मेरे को पूछोगे तो आई वुड सजेस्ट कि
डिजिटल में एज नाम का कोई चीज नहीं है। कोई भी एज पे कोई भी लोग डिजिटल में कुछ भी लेवल पे कर सकते हैं। अगर तुम ये सोच के करोगे कि अरे मेरा एज हो गया, अभी मेरा 10 साल हो गया, करियर का 8 साल हो गया, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकूंगा? मेरे साथ वो लेवल के लोग होंगे जो मेरे से और 5-6 साल छोटे हैं, बट वो लोग वही लेवल पे कमा रहे हैं। ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अगर तुमने सोच लिया है कि मेरे को करना है और मेरे को डिजिटल पे करियर करना है, तो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर एंड यू शुड स्टार्ट फोकसिंग कि तुमको कहाँ से क्या क्या चीजें आने वाली। स्टेप बाय स्टेप करो, स्टार्ट करो। यहाँ से मेरे को, मैं ये लर्निंग करूंगा। अगर तुमने अभी इंटर्नशिप ज्वाइन किया है तो इंटर्नशिप में तुम जहाँ पे जितना भी डिजिटल सीख सकते हो वो सारी चीजें करो। उसके साथ साइमल्टेनियसली जैसे अभी सर का कोर्स है या फिर और कोई एनहांस करने के लिए तुमको कोर्स करने हैं, वो सारी चीजें तुम्हारा बेस लाइन बनाओ। जब तुम बेस लाइन बनाओगे ना, तो तुमको ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बेस यस अगर सही रहा तो आगे जंप मिलेगा, आगे तुमको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिलेगा। सैलरी चलो ठीक है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन तुमको कुछ ना कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट है, वो सब है, वो तो होते रहता है। बट अगर तुम ये 1 साल 2 साल मैनेज कर पाओगे, तो आगे जाके जो तुमको एक्सपोनेंशियल मिलेगा विच इज वेरी हाई, और तुम्हारा वे ऑफ लाइफ विल चेंज rather than a सेल जॉब। मेरे को पता है, मैंने सेल्स स्टार्टिंग में मैंने भी किया हुआ है, आईटी सेल्स ही किया हुआ है। तो वहाँ पे कितना ये रहता है, कितना प्रेशर रहता है, वो सब पता है मेरे को। यस बट सर अगर तुमने चूज किया है कि तुमको करियर चेंज करना है, तो डोंट थिंक अबाउट कि कैसे होगा क्या होगा। जब चूज किया है तो चालू करो और डेडिकेटेडली काम करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, नो वरीज। यस यस श्योर सर थैंक यू सो मच और अगर तुमको कुछ भी लगेगा तो हाँ रोहित सर है, मेरा भी डिटेल्स मैंने रोहित सर को दे के रखा है। अगर कुछ भी रहा, कोई भी किसी को भी, नॉट जस्ट यू, कोई भी स्टूडेंट है जो सर के स्टूडेंट है या नहीं भी है, अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो तुम लोग कभी भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। यस श्योर मैं मेरा डिटेल सर को भेज दूंगा और सर के साथ भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। और आज के, स्पेशली आज का जो सेशन हुआ है, मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं तुमको दिखाना चाहता था, बट सिंस तुम लोग जब एंट्री लेवल पे हो, तुम लोग को ये एडवांस लेवल पे अभी के लिए समझाना वुड नॉट बी द राइट थिंग, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें मिस आउट की या फिर दिखाया नहीं या फिर हम लोगों ने किया नहीं। अगर ये तुम लोग को सबको, अगर ये और भी डिटेल में सीखना है, समझना है, तो रोहित सर के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो। ये हम लोग अलग से, देयर इज अ कोर्स आल्सो व्हिच यू गाइस कैन डू विद सर, और ये सारा अंडरस्टैंडिंग तुमको मिल सकता है आगे जाके। तुमको ये बहुत काम आएगा तुम्हारे कोर्सेज में, तुम्हारे करियर में, और तुम आगे जाके एनहांस हो सकते हो इसके वजह से। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। वो आप सर के साथ डिस्कस कर लेना बाद में। ही विल बी गाइडिंग यू गाइस कि कैसे करे। किसी ने, वैभव ने क्वेश्चन किया है कि डिटेल्स अबाउट न्यू बैच टाइमिंग्स एंड डेट एक बार ऑफलाइन अलग से कलेक्ट सर के साथ कनेक्ट कर लेना। सर की टीम आपको ये चीज के लिए हेल्प कर लेगी। हाँ वैभव, ये हम लोग आपको बता देंगे, आप निकिता के साथ टच में रहिए। तो गाइस ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए विल स्टॉप ओवर एट 12:30 एंड गाइस वी होप कि आप लोगों को कुछ इनपुट्स मिला है जो यहाँ पे निखिल जी ने बताया। और जैसे मैंने बोला, टाइम कंस्ट्रेंट से इसलिए निखिल बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया। और दूसरी चीज ये भी थी कि वो बताएगा भी ना आपको, तो वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको जब आएगा एक्सपीरियंस के साथ, तब आप वो चीजों को बहुत इजीली समझ पाओगे। तो आप लोगों को एक अंदाजा तो आ गया कि बाबा एजेंसीज के साथ काम क्यों करता है, कैसे हायरार्कीज होती है, प्लानिंग क्या होता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया आज कि आप बोलते हो ना कितना स्पेंडिंग करते, तो आप लोगों ने उनके फिगर्स देखे होंगे, 50 करोड़ 60 करोड़ हर महीना, 50-55 लाख रुपए तो वो ऐसे नॉर्मल कैंपेन्स के लिए रन करते। तो सोच लीजिए कि कितना स्कोप है। अगर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, ई कॉमर्स है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है। तो ओपनिंग्स बहुत सारी, जैसे निखिल ने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला कि आप लोग, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, जैसे यहाँ पे दीपक ने पूछा था, तो गाइस यही सब लोगों को हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप लोग ना जो बेसिक्स है ना डिजिटल मार्केटिंग का, वो एक बार आपको थरा अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, तो आगे जाके जैसे 1-1.5 साल आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद एक बार आपने नॉलेज गेन कर लिया अच्छी तरह से और आपको चीजों के बारे में प्रॉपर समझ आ गई ना, फिर सैलरीज का कोई इशू नहीं है। बहुत तगड़ी तगड़ी ओपनिंग्स है। सिर्फ पहले 1-1.5 साल आप समझ लीजिए चीजों को, एक बार आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, आगे डिजिटल में बहुत पैसा है।
यही निखिल ने थोड़ी देर पहले बोला और मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से यही बोल रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे ही सेशंस और भी आगे लाते रहेंगे। मैं निखिल के साथ बात करके अगर आगे भी कुछ ऐसे सेशन रखने आता है आप लोगों के लिए, इसमें बैंकिंग में कुछ एडवांस चीजें बताने का, तो हम वैसे भी सेशंस के लिए ट्राई करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाता है। और निखिल जी, आपको स्पेशल थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम ऑल आवर स्टूडेंट्स, फॉर गिविंग योर टाइम ओवर हियर। थैंक यू सो मच निखिल। और आगे जाके भी आप ऐसे सेशंस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते जाइए हमारे लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही आप लोग आपका नॉलेज बांटते रहिए। चलेगा? थैंक यू सो मच Sure, निखिल। sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. और डेफिनेटली अगर वापस अगर आगे जाके कुछ करना रहेगा तो आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू गाइस। विल मीट Thank you, sir. आपको किसी को थैंक यू सर। थैंक यू थैंक और यू गाइस सर। आप Thank में से you. किसी को भी ये रिकॉर्डिंग अगर चाहिए होगा तो प्लीज लेट अस नो ऑन द ग्रुप। हम लोग आपको इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे। चलेगा? Yes, sir. यस सर। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। टेक केयर। Thank you so बाय much, Thank sir. you. Thank you. Thank you. थैंक यू। Love Gandhi.